Good evening. On behalf of the Women Development Cell of Bhaikaka University, I, Dr. Pragya Nair, welcome you all for this webinar on parenting. Bhaikaka University was established under Private University Act, September 2019. The institutes under Bhaikaka University are Pramukh Swami Medical College, K.M. Patel Institute of Physiotherapy, G.H. Patel School and College of Nursing, L.P. Patel Institute of Medical and Lab Technology, and CAM Institute of Allied Health Sciences and Technology. Women Development Cell was set up as per the directions issued by UGC and Ministry of Human Resource Development, Government of India, under the able leadership of Dr. Utpala Kharod, Provost of Bhaikaka University and Chairman of Women Development Cell. It is a support cell for women of all cadres to empower them physically, mentally, psychologically, and spiritually. The cell has planned various activities to create awareness about social, legal, and constitutional rights, empowerment of women at community level, and sensitize them about the gender equality. Today's webinar is on parenting, which is the need of the hour. On this topic, we have with us Dr. Salim Hirani, pediatrician at Surat, doing his private practice since 1998. He has passed his MD from Government Medical College, Surat. He was the past president of Surat Pediatric Association and Adolescent Health Academy. He has special interest in social pediatrics, adolescent health awareness programs in school, parenting seminars, family life education, life skill education, mental health programs, including suicide prevention program. He has conducted more than 100 sessions on different subjects of parenting and adolescent health. He is a core member of non-government, non-professional social national movement called as Parenting for Peace. This movement was founded in 2014 under the able guidance and mentorship of Shri Hasmukh Bhai, an IPS officer, with a vision for achieving global peace by nurturing loving and joyful children. Under this movement, team of professional doctors, including pediatrician, psychiatrist, psychologist, and educationalist from various teaching institutes, they are working for awareness regarding the right and evidence-based scientific techniques of child nurturing. They are working for creating awareness among parents, teachers, and society for the best practices in child nurturing. Sir has worked in almost all the states of India and also at Dubai and Nepal. He's conducting suicide prevention programs also called as YOLO, You Only Live Once, for the higher secondary and college students, and has organized more than 50 such programs at various medical, engineering, and other colleges. So according to him, this is the only key to achieve world peace, which is a very much needed essence in today's era. So with this, I invite you, sir, to address the participants. Thank you. Thank you, ma'am, for the nice introduction. I'll share my link and then I'll start my session. So good afternoon. It's my pride and privilege to address such a learned audience from the Karamsad. I'm very well known to Karamsad because I had been there for some training workshop, and my favorite guru, Dr. Samu Shekhar, is from Karamsad. So it's my really my honor and pleasure. I was informed that there are many doctors, paramedics, and even other non-medical attendees in this seminar. So I think we'll start with English, but then gradually we may transform it to Hindi because everybody will be able to understand. So before starting, let me first introduce our movement, जो हम जो काम कर रहे हैं, जो Parenting for Peace, जैसे मैडम ने बताया, उसका introduction दिया गया है. Actually, it is a teamwork. We are the whole group of doctors and other specialists, and we are working for the cause. I'll just inform you about that later. But to start with, today we are going to discuss about parenting. Parenting is a very well-known term. हम लोग सब जानते हैं कि बाल घड़तर क्या है या नर्चरिंग क्या है, पर आज हम रियल सेंस में थोड़ा साइंटिफिकली थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली पेरेंटिंग इज.
एक जो एक्सपर्ट है एल आर नोस्ट करके, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि पेरेंटिंग क्या है या हमारी सोच क्या है, व्हाट वी बिलीव पेरेंटिंग इज। यूजुअली हमारी सोच ये होती है कि पेरेंटिंग इज अबाउट कंट्रोलिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड ट्रेनिंग देम टू एक्ट लाइक एडल्ट्स। हम बच्चों का जो वर्तन है उसको कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, दैट्स पेरेंटिंग। और उसको ट्रेन करते हैं कि एडल्ट जैसे बने। पर in true sense, it is this activist believe that the parenting is about controlling our own behavior and acting like an adult myself. So यहाँ हम ये देखेंगे, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों का बिहेवियर कंट्रोल करना है, बच्चों को एडल्ट की तरह बनाना है, कि बिफोर दैट आर वी बिहेविंग प्रॉपरली, या हमारा जो वर्तन है या हमारा जो एटीट्यूड है बच्चों के प्रति वो मैच्योर है, हम एडल्ट के लाइक बिहेव करते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम वो कॉन्शियसली थोड़ी बात करेंगे कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव एंड लिव व्हाट दे लर्न। तो बच्चों जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है या बच्चे जो सीखते हैं वो कैसी जिंदगी जीते हैं, कैसे माहौल में जीते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि बच्चे आगे जाके कैसे बच्चे बन के बाहर आएंगे। So just to understand parenting in more detail, let us first psychologically think what parenting is. What the psychologists say that what is parenting. Anybody from our group can throw light on it. What is parenting? I'll be happy if you will interact with us. It will become more interesting if you also speak something. Anybody of you have idea what parenting is? You can just unmute yourself or write in the chat box. Okay, what do we mean by parenting? Any one or two response? Do we? Hello. Yes, please. Hello, sir. Yeah. I'm Dr. Prarthana from Ahmedabad. I'm a pediatrician. Okay. And I'm a mother of 3-year-old child. Okay. To me, parenting has been a journey. I mean, it's a journey from within also, because as you have explained that it helps me to behave properly. It has made me behave in a better way as a human being. And in a way, because I always feel that the way I behave, the child will take that as an example. Maybe I'm not defining it, I'm just explaining what I feel. And second thing is, parenting is all about nurturing, encouraging the child positives, and helping the child to come out of or improve where he is lagging behind, or what the there may be some things which the child should be discouraged, or that they should not be promoted. So there he needs to be helped in that way, and the positive potential which he has, that should be encouraged. These are some of my ideas about parenting. Absolutely right, ma'am. You are absolutely right. Your word like encouragement and help, these two words are very important. That is what I wanted to emphasize on the definition of parenting, how the scientists have defined, or the experts or psychologists have defined the parenting. They have said that parenting or child rearing is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, all aspects of the child development, starting from infancy to childhood. So two words that are important in the definition is promoting and supporting. हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें बच्चों को मदद करनी है। ये दो टर्म ही समझने की जरूरत है, इसी से हम पेरेंटिंग करेंगे। तो आज हम यही बात करेंगे कि बच्चों को कैसे हम प्रमोट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि क्या है, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को नर्चर करना चाहिए, बच्चे को बराबर उसका घड़तर होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, रूल्स बनाएंगे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जो बच्चा या जो सजीव, एनी लाइव ऑर्गेनिज्म, व्हेन दे कम ऑन दिस अर्थ, जब वो जन्म लेते हैं एज ए सजीव, तो उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो सब कुछ आजू बाजू देख के, आजू बाजू एक्सपीरियंस करके सब कुछ सीख जाता है। हमारी फर्ज खाली इतनी होती है कि उसको मदद करें, उसको सपोर्ट करें, और हम उसके साथ में रहें। बाकी और कुछ हम करने जाएंगे तो पेरेंटिंग में हम शायद उनकी बाधा डाल सकते हैं। थोड़ी आगे बात करेंगे। So this is the very strong message and very strong line from some anonymous कि don't prepare the path for the child,
prepare the child for the path. तो हमें बच्चों को थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. Can everybody mute your mic, please? So बहुत important message है कि don't prepare the path for the child. हमें बच्चों के लिए पाथ नहीं बनाना, पाथ बच्चों को Okay, so this is about parenting, and as you know, the most difficult task in the world is about to learn about parenting, because हमने देखा है कि हम खुद भी मेडिकल फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, हमने भी एमबीबीएस किया, एमडी किया, हमने भी पूरा सब चाइल्ड साइंस, बच्चों का साइंस भी सीखा while doing एमडी पेडियाट्रिक्स, बट कभी इस पे एम्फेसाइज नहीं किया, या पेरेंटिंग के बारे में इतना जो हमें सीखना चाहिए, हमें जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. और जनरल पब्लिक का भी ऐसा है कि सब ट्रेनिंग अवेलेबल है, प्लम्बर की ट्रेनिंग अवेलेबल है, पायलट की ट्रेनिंग अवेलेबल है, लेकिन पेरेंटिंग की ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं दी जाती है. जब शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सब पेरेंट्स बन जाते हैं, तो कहीं पे भी पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट, कि हमें पता ही नहीं होता है पेरेंटिंग क्या है. Even we as a doctor, sometimes we are doing so many mistakes. When we started this movement in 2014, I got it कि मैंने भी पेरेंटिंग में कितना मतलब शॉर्टफॉल्स किया है, हमें भी पता नहीं था ये सब चीज़ होनी चाहिए या ऐसा बिहेव करना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज नीड ऑफ द आवर, जैसे मैडम ने बताया. It's very, very important. I congratulate the Women's Empowerment team of Bhaikaka University to organize such a wonderful and very important talk on parenting. डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें पेरेंटिंग की जो स्किल है, उसमें 1+1 2 ऐसा नहीं होता है, कई बार वो चेंज भी होता है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग होते हैं. आज मैं आपको मेरा प्रिंसिपल बताऊं कि मेरे बच्चे को मैंने ऐसे पाला है, मैंने ऐसा किया, आप भी ऐसा करो, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हमने तारे ज़मीन पे पिक्चर में भी देखा था कि हर एक बच्चे की जो इमोशनल फ्रेम होता है या साइकोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क होता है, सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है. तो पेरेंट्स को बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटिंग समझना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से अपने बच्चों में वो क्या कर सकते हैं, कैसे बच्चों को नर्चरिंग कर सकते हैं, वो खुद अपने क्रिएटिविटी से डेवलप कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे. द सेकंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, हम ये सब अटेंड करके या ऐसे पेरेंटिंग सेमिनार्स अटेंड करके या पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेके, अल्टीमेटली हम सब पेरेंट्स का गोल क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चाहते हैं, हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं. थोड़ा 1-2 फीडबैक्स मुझे मिल सकता है कि हमारा गोल क्या होता है जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं. इट विल बी बेटर इफ यू ऑन योर वीडियो सो वी कैन लुक एट यू, बिकॉज ये एकदम वैकेंट रिस्पॉन्स आता है, पता नहीं चलता है कौन बोलता है. So we can, on your video, we can see you what you are speaking. Please, can anybody tell what is our goal of parenting? हम जब parenting करते हैं या parenting के बारे में awareness की बात करते हैं, तो हमारा intention क्या होता है? What we want? Yes? Anybody? क्या गोल होता है? हम क्या करना चाहते हैं parenting सीख के या parenting के बारे में awareness लेके? हमारे बच्चों में क्या देखना चाहते हैं? Please. हम बच्चों को कैसे बनना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, या क्या बच्चों में देखना चाहते हैं? 2-3 पॉइंट्स. हाँ, हेलो. या प्लीज वेलकम. या दिस इज अर्चना निम्बालकर. या रिगार्डिंग मतलब ये गुड आफ्टरनून सर. हाँ सर. सर, वी वांट टू डेवलप इनटू अ सेल्फ एनलाइटेंड चाइल्ड, लाइक और जो इंडिपेंडेंटली अपने खुद के डिसीजंस ले सके, मतलब फाइनली इस तरह से, लाइक. ओके. व्हाट एल्स? दैट्स ऑल? या सर. Okay. Any other idea? Anybody else want to join something? Yeah. Okay. So let me proceed, because we have there is some time limitation. So we'll proceed with the discussion. Okay, what goals we have? See, when we ask the audience, okay, what sort of child you want, so someone will say healthy, someone will say responsible, self-confident, जैसे मैडम ने बताया, self-dependent, loving, can build strong relationship, faith, morals, values, hardworking, intelligence, socialize. सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम हमारे बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें वो टेक्निक बताओ कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में ये सब गुण आ जाए. लेकिन एक बात हमेशा जो मिसिंग होती है,
जहाँ से हमने हमारा ये मूवमेंट शुरू किया है, उसका जो पूरा जो बेसिक रूट फ्रेमवर्क है वो है कि हम बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को खुश देखना चाहते हैं. सी दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी नोबडी थिंक्स कि भाई हमारे बच्चे भले इंटेलिजेंट हो, भले एकेडमिकली एक्सेल करते हो, बड़े डॉक्टर बन गए हो, उसका नाम हो, बट अगर बच्चा अंदर से खुश नहीं है, सो दैट इज एवरीथिंग इज इन वेन. बच्चे को अगर खुश रखो आप, ऐसा कहा जाता है कि बच्चा खुश होता है तो खुद आत्मविश्वासु होता ही है, खुद सेल्फ एस्टीम वाले होते ही है. हम भी देखते हैं जब हम अंदर भी हमारी खुशी हमारे पास हो तो हमारा सक्सेस रेट भी और बढ़ जाता है. हमारे प्रैक्टिस में होता है कि जिस दिन हम खुश होकर जाते हैं कंसल्टिंग रूम में तो हमारे पेशेंट्स और खुश हो जाते हैं, हमारे पेशेंट जल्दी अच्छे हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम ये सीखेंगे कि हमारे बच्चे को खुश कैसे रखेंगे. ये नहीं बताऊं कि एकेडमिकली एक्सेल आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पर हम आज ये देखेंगे कि बच्चे को खुश कैसे कर सकते हैं. और ये जो कंसेप्ट है बच्चे को खुशी देना या बच्चे को खुश रखना, वो पूरा हमारा मोटो था पेरेंटिंग फॉर पीस, जो नाम है कि विश्व शांति के लिए बाल घड़तर, या गुजराती में हम कहते हैं बाल घड़तर थकी विश्व शांति. क्योंकि हमारे जो मेंटर है, हमारे जो गाइड है, जो हमें ये सब बात बताते हैं और हम वो रास्ते पे चलाते हैं, वो श्री हसमुख भाई पटेल अभी एडिशनल डायरेक्टर है गांधीनगर में, खुद IPS ऑफिसर है. उन्हें 2014 में जब वो सूरत में IGP थे तब हम सबको बुला के एक मीटिंग करके हमें ये समझाया उन्होंने कि अगर हमें शांति लानी है तो हमें बचपन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे हमने देखा है कि बड़े को तो बहुत सारा प्रीचिंग किया जाता है, मुरारी बाबू की कथा होती है तो 1.5 लाख आदमी सामने बैठ के सुनते हैं, लेकिन सब अच्छे नहीं बन जाते, सब में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है. क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो फेज था हमारा, जहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, वो फेज हमारा पास हो गया. आप चोर को कितना भी मारो, कितनी भी सजा दो, आतंकवादी को फांसी दो, फिर भी अगर जो ये वायलेंस है या जो ये हेट्रेड जो पूरा वर्ल्ड में चल रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा. अगर इसको काम करना है तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द चाइल्डहुड. और हमारा जो एम है वो है कि लविंग एंड जॉयफुल चाइल्डहुड फॉर ए पीसफुल सोसाइटी. हम पूरी हमारी एक्टिविटी से उसको फोकस हमने इस पे किया है कि बच्चे को एक प्यार भरा, एक आनंद भरिया, खुशी भरिया बचपन बच्चों को हम कैसे दे सके, उसके लिए प्रयास करें. और इसके लिए एक बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट सॉन्ग था, मैं कई बार हमारे प्रोग्राम में भी सुनाता हूँ और मुझे लगता है कि आप सबके साथ भी थोड़ा शेयर करूँ, थोड़ा हमें ब्रेक भी मिल जाएगा कि एक सॉन्ग भी सुन लेते हैं. तो आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर दैट सॉन्ग एंड चल के तुझे भले के चलो एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे. चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे. चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे. कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर ना खले. जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. एक ऐसे गगन के तले एक तो ये जो गाना था उसमें पूरा हमारा थीम समझाया गया था कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. वो हमारे वो थीम पे हम ये काम कर रहे हैं. तो थोड़ा आगे और पेंटिंग में बैठते हैं कि हम क्या करते हैं और हम क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं.
Now, starting with the basics, we know that our psychological makeup, अपना behavior या पूरा बच्चों का nurturing या बच्चों का psychological outcome होता है, it depends mainly on two broad factors, that is nature and nurture. जो नेचर होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो जेनेटिक होता है, हमारा जेनेटिक जो फ्रेमवर्क होता है उस हिसाब से हमारा आउटकम होता है. तो वो जो भगवान ने हमें वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है उस हिसाब से होता है. लेकिन नर्चरिंग जो होता है, जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, उसमें डेफिनेटली हम सब कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चे को अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल, एक डिसिप्लिन और एक खुश बालक का एक नर्चरिंग कर सके. तो उसकी बात करेंगे. जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब वो जो कुंभार होता है, जब वो मटका बनाता है मिट्टी का, तो जब मिट्टी गीली होती है तो उसको शेप दे के या कैसे भी मोल्ड करके कितनी भी सुंदरता देना चाहता है वो दे सकता है. लेकिन एक बार मिट्टी का वेसल बन जाता है, एक बार सूख जाता है, बाद में वो कुछ भी करने चाहेगा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा करेगा तो मिट्टी का मटका टूट जाएगा. सेम थिंग हैपन्स फॉर द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में भी जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, हम जो बोलते हैं जो पहले 1000 डेज और बाकी के 3 साल भी, ये वेरी 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 सेंसिटिव होता है. ये एज में ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, जो एक्सपीरियंस करता है, माँ बाप से उसको जो अनुभव मिलते हैं, उसकी इम्पैक्ट लाइफ टाइम लेती है. क्योंकि ये एज ऐसा है, उसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी ब्रेन में होती है. ब्रेन काफ़ी कुछ ये एज में ग्रास्प कर सकता है और हर एक चीज़ नई नई जो बच्चा सीखता है उसका एक साइनेप्स बनता है, एक ब्रेन में कनेक्शन बनता है. और ऐसा कहा जाता है कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए फिर परमानेंट रह जाते हैं. और काफ़ी पोटेंशियल्स ब्रेन में होता है. और अगर आप काम में नहीं लेते वो न्यूरॉन्स को, तो न्यूरॉन का प्रूनिंग भी हो जाता है, न्यूरॉन्स चले भी जाते हैं, हम उसको यूज और लूज, अगर यूज नहीं करते तो वो हम लूज भी कर देते हैं. तो ये पीरियड हमें पकड़ना है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, कि हम बच्चों में क्या अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छी खुशी बच्चे को कैसे दे, उसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट रह सकता है. मुझे एक मूवी याद है, बहुत अच्छी मूवी थी, आप सबने देखी हो, पता नहीं हमारे ज़माने की है, कि शक्ति पिक्चर था, दिलीप कुमार थे उसमें, बहुत लीजेंडरी एक्टर थे. और उसमें दिलीप कुमार खुद एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं. और उसने एक बार एक माफिया गैंग के जो यशवंत नाम का जो माफिया गैंग का बॉस था उसको गिरफ्तार किया. और उसके बदले में वो पूरी गैंग ने उसका खुद का बेटा जो हार्डली 7-8 साल का था उसको वो कर दिया, उसको अपहरण कर दिया उसका. और फिर वो वहाँ से फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई अगर तू तेरा बेटा चाहता है तो तू यशवंत को छोड़ दे, तो मैं तेरा बेटा वापस कर दूंगा. अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कनेक्शन मिलने से पहले वो जो माफिया का बॉस था या उसका जो पूरा अड्डा था वहाँ पे, जिसको बच्चे को वहाँ पे कैद करके रखा था, तो उसको वो जो बॉस को कहीं जाना हुआ, इसलिए उसने उसके असिस्टेंट को बोल के वो गया कि अभी वो इंस्पेक्टर का फ़ोन आएगा, जवाब आएगा कि वो क्या करता है, तो वो पूरा तू रिकॉर्ड कर देना, फिर मैं आके सुनूंगा, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे कैसा करेंगे, बच्चे को छोड़ना है नहीं छोड़ना है. तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने फ़ोन किया और दिलीप कुमार ने सामने से जवाब दिया. दिलीप कुमार बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर उसमें होता है. तो उसने खाली इतना कहा दिलीप कुमार ने कि मैं जानता हूं कि मेरा बच्चा तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन यशवंत एक मुजरिम है, बहुत गंभीर मुजरिम है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा. आप चाहे तो मेरे बच्चे को मार डालो, मेरे को कुछ पड़ी नहीं, लेकिन मैं मेरी जो वर्दी है उससे मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं यशवंत को नहीं छोड़ूंगा. इसने बहुत अपनी जो एथिक्स थे प्रोफेशन के वो एक्सप्रेस करके वो बताया. अभी वो चीज़, वो जो वहाँ पे जो माफिया की पूरी जो अड्डा था उसमें वहाँ उसने रिकॉर्ड कर दिया, तब वो पुरानी टेप में रिकॉर्ड होता था. और जब रिकॉर्ड की हुई चीज़ जब वो खुद बॉस आया उसको सुनाने, जब रिकॉर्ड बजाई, तो ये पूरी रिकॉर्ड बच्चे ने सुनी. बच्चे के कान में वर्ड्स गए कि मेरे फादर ने ऐसा बोला कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे वर्दी के साथ, मेरे पेशे के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, आप चाहे तो मेरे बच्चे को मार डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी बच्चा तब 7-8 साल का ही था और सेंसिटिवली उसने वो मैसेज इतनी गंभीर रूप से उसकी मानस पे असर कर गया. आई कॉन्ग्रेचुलेट द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, क्योंकि बहुत एक्सेलेंटली वो प्रेजेंट किया है कि पूरी लाइफ बच्चे को ये जो पिताजी के जो वर्ड्स थे वो घूमते रहे. और ये इतना उनको अपने लाइफ में उसने परेशान किया कि वो बाप बेटे कभी एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाया. और फिर वो हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर पे चला जाता है, वो माफिया गैंग में ज्वाइन हो जाता है, वो वायलेंस करता है, एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, अल्टीमेटली मर जाता है, अपने बाप के हाथ से ही मर जाते हैं. तब वो बहुत अच्छी एक बात करता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था, आई लव यू सो मच डैडी, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो गया, जब ये इंसिडेंस हुआ और मेरे दिमाग में घुस गया एज इफ मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ. तो सी
अगर आप मेच्योर भी हो जाते फिर आप चाहते हो तो भी वो दिमाग में से वो जा नहीं सकता है कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, ये तो पिताजी ने अच्छी रीति से मजबूरी से कहा था। पर कई बार हम तो अभी जानबूझ के भी ऐसे ऐसे सेंटेंस, ऐसे ऐसे इमोशनल इनपुट्स बच्चे में डाल देते हैं, और ये एज ऐसी है यहाँ पे जो बच्चा कुछ सुनता है, देखता है, वो पूरी लाइफ उसका पीछा करेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फेज हम बराबर संभाल लें। ये फेज में स्पेशली 8-9 साल तक जो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 3 years और 2 years, जब बच्चे समझने लगते हैं, तब बच्चे को ऐसा माहौल दो कि बच्चा को लाइफ टाइम के लिए उसको कुछ टेक होम मैसेज मिले या अपनी लाइफ सुधर जाए। और सेकेंडली ये बिलीफ सिस्टम के ईयर्स है, क्योंकि एक साइनेप्सिस बन जाता है, एक बिलीफ बन जाती है, और वो बिलीफ की लाइफ टाइम रहती है। और बिलीफ जब इमोशंस के साथ बनती है, खास करके माँ बाप के साथ रह के जो बिलीफ एस्टेब्लिश होती है, या अपने चहेते व्यक्ति हो या अपने केयर टेकर हो जिसके पास इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके साथ जो बातें बनती है, उनके साथ जो एक्सपीरियंस बनता है, वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है, और बिलीफ सिस्टम लाइफ टाइम रहती है। इसलिए हमारा बिहेवियर क्या है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, वो बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आप एब्यूजिव वर्ड बोलेंगे, आप व्यवहार अच्छा नहीं रखोगे, आप कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करोगे, या आप गालियाँ बोलोगे, तो बच्चे डेफिनेटली ये सीख जाएंगे। क्योंकि बच्चे का दिमाग सही है गलत है वो सोचने के लिए अभी ट्रेन नहीं है। बच्चे जो देखते हैं उसको मान लेते हैं कि यही चीज़ है। अगर बच्चे के पास अब 2 काम कराने के लिए आपने 2 थप्पड़ मार दी, तो बच्चे के दिमाग में बिलीफ सिस्टम आ गई कि कुछ भी काम किसी के पास भी कराना हो, 2 थप्पड़ मारो, अपना काम हो जाएगा। तो वो बिलीफ सिस्टम हो गई, उसको मालूम नहीं थप्पड़ मारना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभल के, बहुत क्रिटिकली तलवार की धार पे चल के हमें नर्चरिंग करना। इसलिए हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि व्हाट आर द राइट एंड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो टेक्निक्स है वो क्या हम उसको अपना सकते हैं। बहुत पावरफुल पिक्चर था, इसलिए मैंने खास लिया है। मैंने देखा था पर व्हाट्सएप पे आया था। अल्टीमेटली चाइल्ड्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड विल डिपेंड ऑन हाउ यू रेज हिम और हर। होम इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ द चाइल्ड। ट्रांसजेनरेशनल बहुत अच्छा बताया, मम्मी की जीभ, बेटे की जीभ, और वो सामने दूसरे बच्चे को इमोशनली हर्ट करके उनको रुलाता है। तो हम कैसे बोलते हैं, हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, वही हमारे बच्चे करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज के युग में क्या क्या चैलेंजेस है बच्चों में, हम पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका एक पासा ये है कि बहुत चले, आप कितने पेरेंट्स को पूछो, इंटरव्यू करो कि क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, तो काफी सारी परेशानियां लोग सुनाएंगे। हम तो लर्निड ऑडियंस है, हम सब काफी डॉक्टर्स हैं, हमारे में शायद इश्यू कम होगी। इश्यू तो सभी जगह होते हैं, लेकिन आप थोड़े मिडिल क्लास में जाओ या जो इलिटरेट लोगों में जाओ तो वहाँ बहुत इश्यूज है। उन लोग की हमेशा कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, बहुत जिद्दी है, बहुत एग्रेसिव है, इम्पेशेंट है, उसमें थोड़ा भी धीरज नहीं है, कुछ भी चाहिए तो चाहिए, अभी खिलौना चाहिए तो अभी ला के दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा आ जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, मिसबिहेवियर करता है। और अभी एक नई चीज जो इवॉल्व हुई है, मीडिया एडिक्शन। तो ये सब चैलेंजेस हम अभी फेस कर रहे हैं, और सबके आंसर पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे सुनता नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है तो मैं क्या करूं। तो आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे, हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आई नो कि एक हर एक प्रॉब्लम को हम शायद एड्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताऊं तो प्रिंसिपल्स आपको सभी मिसबिहेवियर को एड्रेस करने के लिए काम करेगी। ऐसी बातें हम करेंगे। तो क्या है वो बातें, वो थोड़ा आगे देखते हैं। बहुत बड़ा जो एक टॉपिक है, दैट इज मिसबिहेवियर, के बच्चे मिसबिहेव करते हैं। सबकी ये फरियाद होती है कि मेरे बच्चे बहुत, किसी के कोई गेस्ट आ जाते हैं उसके सामने ऐसी जीद लेके बैठ जाते हैं, मेले में जाते हैं तो पूरा नीचे गिर जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, बस मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। मेरा बच्चा तो मानता ही नहीं है। तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ी मैं 2 मिनट बात करूंगा। आज वो टॉपिक मिसबिहेवियर का नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली सब प्रिंसिपल्स थोड़े थोड़े बता दूंगा। फिर कभी मौका मिला फ्यूचर में तो हर एक टॉपिक पे भी 1 घंटे का सेमिनार हो सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड गैर वर्तणूक या मिसबिहेवियर जो हम बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। हम आज से टेक होम मैसेज ले ले कि कोई भी बच्चा जब मिसबिहेव करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ये बहुत समझने वाली बात है। हम ऐसा कहते हैं बच्चे ऐसा ही है, क्यों करते थे वो, तो दादी ऐसा बोलती, उसके बाप भी ऐसा था, उसकी माँ भी ऐसा था, नहीं तो हमारे घर में सब ऐसे ही है, सबके नेचर ऐसे शॉर्ट टेम्पर ही है, वो भी बहुत गुस्सा करता था इसलिए ये भी गुस्सा करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मिसबिहेवियर जब बच्चा करता है तो देयर इज ए पर्पस। और बच्चे इतने निखालस, इतने ऑनेस्ट, भगवान का एक निर्दोष फूल है कि बिना कारण बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बिना कारण बच्चे कुछ नहीं करो। बच्चे की हमेशा ये तमन्ना होती है
कि वो एक्सेल करे, उसकी सब तारीफ करे, उसकी वाह वाह हो, उसकी सब एक्नॉलेज करे, सब उसके अप्रिशिएट करे। ये बच्चे की हमेशा बेसिक जो बोलते हैं ना हम, जो पायानी भूख होई छे हर एक बच्चे का। तो बच्चे क्यों फिर ऐसे मिसबिहेवियर करके खुद को बदनाम करते, खुद को खराब दिखाते हैं? तो क्या होता है? तो उसके पीछे पर्पस होता है। सो वेन एवर योर चाइल्ड इज डूइंग मिसबिहेवियर, डोंट फोकस ऑन बिहेवियर, फोकस के व्हाई डिड योर चाइल्ड इज डू दिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी उसमें थोड़ी डिटेल में बात करूँ, क्योंकि हम सब काफ़ी लिटरेट लोग हैं, तो थोड़ी ये बात समझने की कोशिश करें कि रीजंस उसके साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किए कि हाउ व्हाट आर द रीजंस। तो ऐसा देखा गया है कि 80% ऑफ द मिसबिहेवियर, आप 10 मिसबिहेवियर लो, उसमें से 8 मिसबिहेवियर, 80% ऑफ द मिसबिहेवियर दे आर एक्सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन बाय द पेरेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझो, आज हम अटेंशन देना चालू कर देंगे बच्चों को, तो 80% ऑफ द मिसबिहेवियर बच्चों में से चला जाएगा। अभी कैसे देने का मैं आगे बात करूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय अटेंशन, राइट? सामने देख के आंखें निकाल के फुटपट्टी मारना वो अटेंशन नहीं। अटेंशन क्या है वो भी बात करेंगे, लेकिन क्या ये क्यों होता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि हमारा क्या होता है कि जब बच्चा सुबह उठता है तो सुबह से स्पेशली मदर का फोकस यही होता है कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ठीक से नाश्ता नहीं किया, तूने ठीक से ब्रश नहीं किया, तेरा होमवर्क भी तूने छोड़ दिया, तो स्कूल में लेट हो गया, तेरी रिक्शा आ गई, ऐसा पूरे दिन सुबह से शाम तक हम बच्चे को तू 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 ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता है। और बच्चे ने कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी, मानो कि हाथ में से कब गिर गया और कब टूट गया, तो माँ बाप दोनों उस पर टूट पड़ेंगे, ये तूने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो बच्चे सुबह से शाम तक यही टॉर्चरिंग सुनते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो बच्चे को क्या होता है कि यही लगता है कि उनके माँ बाप उनकी सब बुराइयां ही ढूंढते हैं और बुराइयां पे ही फोकस करते हैं। तो ये नेगेटिव अटेंशन हुआ। डेफिनेटली कभी कभी बच्चे इसको भी इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। हम कभी पॉजिटिव अटेंशन नहीं देते। अपने बच्चों में काफी सारी चीजें ऐसी जो बच्चे अच्छी करते हैं। कोई बच्चा ड्राइंग अच्छा करता हो, कोई बच्चा गाना अच्छा गाता हो, कोई बच्चा पोइट्री अच्छी बोलता हो, कोई बच्चा एक्टिंग अच्छी करता हो, कोई बच्चा लेसन अच्छा करता है, उसके हैंड राइटिंग बहुत अच्छे है। लेकिन ये सब चीज हमें बहुत कम दरकार करते हैं कि हमारे बच्चे में क्या क्या टैलेंट है। तो हमने कभी वो लेके बच्चे को अप्रिशिएट नहीं किया, वो पॉजिटिव अटेंशन बच्चे को नहीं मिला। इसलिए क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी अच्छी चीज करूँ, कुछ भी अच्छा काम करूँ, तो मुझे देखने वाला है, मेरी तारीफ करने वाला तो वो है नहीं। कौन मुझे करे बोलेगा कि आपने अच्छा किया कि अच्छा किया। पर अगर मैं कुछ गलत चीज करता हूँ तो पूरी फैमिली मेरे पे टूट पड़ती है। और अटेंशन को फोकस करना या अटेंशन सीख करना, ये बच्चों की बेसिक इनबिल्ट साइकोलॉजी है। इसलिए बच्चे अटेंशन फिर कैसे चाहते हैं? पॉजिटिव अटेंशन तो मिलता नहीं है, अच्छी चीज करने से तो कुछ होता नहीं है। तो फिर बच्चे ये सीख जाते हैं, बच्चे के बिलीफ सिस्टम में बैठ जाता है कि मैं ये मस्ती करूँ, मैं ये मिसबिहेवियर करूँ, मैं ऐसा बोलूँ, मैं ऐसा करूँ जो मेरी मम्मी पापा को बुरा लगेगा, तो वो लोग दोनों मेरे पास आके बैठ जाएंगे, मेरे को डांटने लगेंगे, उस बहाने मेरे पे अटेंशन तो देंगे। उसकी जो अटेंशन सीकिंग जो भूख है वो तो उसमें तो संतोष मिलेगा उसको। और ये करने के लिए बच्चे मिसबिहेवियर करने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है बच्चे को पॉजिटिव अटेंशन दें, और कैसे देने का मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ये बच्चे के बिलीफ सिस्टम में इसलिए बैठ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमने देखा है हमारे कंसल्टिंग में बच्चे आते हैं, तो आते ही मतलब हम मम्मी के साथ बात करते, पेरेंट्स के साथ बात करते, तो बच्चे बीच में मम्मी 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 डैडी मम्मी मम्मी, फिर मम्मी को बहुत गुस्सा तो एक मार देती, चुप मैं देखता नहीं, मैं डॉक्टर के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों किया बच्चे ने, ऐसा क्यों किया मम्मी मम्मी? क्योंकि जब रियली मम्मी को सुनना होता है तब मम्मी ने ध्यान से अटेंशन से नहीं उसको सुना है। तो बच्चे के बिलीफ सिस्टम में बैठ गया कि जब तक मम्मी को मैं टॉर्चरिंग नहीं करूंगा, जब तक मम्मी की साड़ी में नहीं खींचूंगा, जब तक मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा, तब तक मेरी मम्मी मेरे को जवाब नहीं देंगी। ये उसने सीख लिया, इसलिए मिसबिहेवियर किया। सो ये जस्ट बहुत बेसिक आपको समझाता हूँ कि हर एक मिसबिहेवियर के तो काफी और 10-12 कारण है, पूरा मिसबिहेवियर का एक सेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण मैंने बताया ये अटेंशन सीकिंग होता है। तो आज से हम अगर ये सीख ले कि बच्चे को सही तरह से पॉजिटिव अटेंशन कैसे दिया जाए, तो काफी कुछ मिसबिहेवियर हम टाल सकते हैं। तो बच्चे को हम कैसे नर्चर, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर हम क्या करते हैं, बच्चे कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो हम रिएक्शन देते हैं बच्चों को। और साइकोलॉजिकल जो हम बात करें तो रिस्पॉन्स हमेशा माइंडफुल होता है, हमेशा कॉन्शियस होता है, लेकिन रिएक्शन हमेशा डैमेजिंग होता है। वो हमेशा सामने वाले को इंसल्ट करता है, हमेशा सामने वाले को इमोशनल ट्रॉमा देता है, साइकोलॉजिकल इंजरी देता है। सो
डोंट गिव रिएक्शन, थिंक कैसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, सोचो, फिर आप नक्की करो कि हम बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग या माइंडफुल पेरेंटिंग। सपोज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ कार्टून में दिया है, माँ अपने बच्चे को लेकर निकलती है, रास्ते में भिखारी बैठा है, तो एक माँ ऐसे बच्चे को ऐसा सिखाती कि इफ यू डोंट स्टडी ना यू विल एंड अप लाइक दी। हमारे बहुत कॉमन डायलॉग है, जो भणना नहीं तो भणसे, नहीं तो પછી રિક્ષા ચલાવશે, મજૂરી કરશે, પછી મને કહેતો નહીં તારે મજૂરી કરવી હોય, રિક્ષા ચલાવી હોય તો નહીં ભણતો. See, this is what tone we use. This is not at all, it is basically harming your child. It is spoiling the self esteem of your child. And अगर समझाना हो तो कॉन्शियसली समझाना हो, माइंडफुलनेस के समझाना हो, तो हम ये बात करेंगे कि सी यू विल बी एबल टू बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड फॉर हिम. ये आदमी है, ये बंदा है, उसकी लाइफ बहुत खराब है, बहुत दुखी है, अगर तू अच्छी तरह से पढ़ेगा तो हम इसकी दुनिया सुधार सकते, उसकी लाइफ सुधार सकते. अगर ऐसे टोन में बात की जाए तो डेफिनेटली बच्चे की साइकोलॉजी में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. तो ये सब स्किल हमें आज सीखनी है कि कैसे बात करेंगे. और बिफोर लेबलिंग, बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर सेइंग सम हाई टोन वर्ड्स और एब्यूजिव वर्ड्स, थिंक ट्वाइस. सी के आपका ब्रेन और आपका टंग के बीच में कनेक्शन है. डोंट यूज ऑटोनोमसली, आप टंग यूज मत करो, उसको माइंड के साथ कनेक्ट करो और सोचो आप क्या बोलते हो और उसकी इम्पैक्ट बच्चे में क्या आ सकती है. सो दैट विल गिव माइंडफुल पेरेंटिंग और पॉजिटिव पेरेंटिंग, और हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग. तो अभी बात करते हैं जब बच्चा का जन्म होता है, थोड़े हम हमारा बैकग्राउंड में हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. जब हमारे घर में हमारे वहाँ बच्चा हुआ तो हम कितने खुश थे, कितने ब्लेसिंग्स थे, कितनी प्रार्थना की हमने भगवान को, कितना शुक्रिया अदा किया कि भाई हमें बच्चा दिया, राइट. हम कितने खुशी होते हैं, कितने फ़ोन कॉल्स करते हैं, कितनी मिठाइयाँ बांटते हैं, खुश हो जाते हैं. बस हमारे वहाँ बस भगवान ने हमारे सामने देख लिया, हमको बच्चा दे दिया, कितनी खुशी होती है. उसका कोई हम मतलब वी कुड नॉट राइट इन द वर्ड्स कि हमें क्या खुशी हुई थी, इतनी हम खुश हो जाते. फिर पता नहीं धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे 3 महीने के होते, 6 महीने के होते, 1 साल के होते, फिर जो पेरेंट्स हैं वो गजनी जैसे बन जाते और बच्चे को एकदम डरा देते हैं. एक आवाज़ करते हैं, बच्चे बेचारे यूरिन पास कर लेते, इतने बच्चे डर जाते. तो वही बच्चा जो पूरी हमारी दुनिया की खुशी थी, हमारा चंदा था, हमारा सूरज था, हमारा पूरा वर्ल्ड था, तो अचानक 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही बच्चा हमारा सब प्रॉब्लम्स के कारण बन जाते हैं. तो ये थोड़ी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई वी ब्लेम द चाइल्ड के. सो अल्टीमेटली बच्चों का नर्चरिंग या बच्चे का आउटकम क्या होगा, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ वी पेरेंट अवर चिल्ड्रन. कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल, किस तरह से हम बच्चों का नर्चरिंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो आज हम सब अपने आप को पूछते हैं, अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल वी आर एडॉप्टिंग. आपको मालूम होगा कि ये पेरेंटिंग स्टाइल अलग अलग 4 जात की साइकोलॉजी में आती है कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग. अदर सब टाइप्स आर देयर, बट ब्रॉडली वी कैन डिवाइड पेरेंटिंग इनटू 4 पार्ट. अभी ये सब जो अलग अलग टाइप की पेरेंटिंग है उसमें मिक्सिंग थोड़ा हो सकता है. कोई प्योरली ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग करता है, कोई प्योरली निग्लेक्टफुल करता है, कोई ऑथोरिटेटिव भी करता है, साथ में परमिसिव भी करता है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट कि आप कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल एडॉप्ट कर. पर आप थोड़ी, हमारे पास जब हम ऑफलाइन सेशन लेते हैं तो हमारे पास पूरी क्वेश्चनर है. क्वेश्चनर हम ऑडियंस को देते हैं, दे फील दैट क्वेश्चन एंड देन दे विल डिसाइड कि आप कौन सा पेरेंटिंग कर रहे हो और कौन सा पेरेंटिंग हमें करना चाहिए, फिर हम वो सीखेंगे. तो आज मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन 3-4 स्लाइड में करता हूँ कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होती है, उसमें कैसा होता है. तो जस्ट फिर आप सोचो कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सी स्टाइल एडॉप्ट कर रहे हो. तो लेट अस थिंक वन बाय वन. सो विल स्टार्ट विद ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. ऑथोरिटेरियन एक पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारे रूल्स बनाते हैं, उसमें बिल्कुल इमोशनल बॉन्डिंग बहुत कम होता है. बच्चों की तरफ एम्पैथी या बच्चों की तरफ प्यार, बच्चे की तरफ लगाव, बच्चे को हूंफ, उसमें बहुत कम होती है. बस आई एम द बॉस, यू लिसन टू व्हाट आई से. आपको कुछ नहीं बोलना है, डोंट स्पीक एनी वर्ड, मैं जो बोलता हूँ वही करना है, मैं कहता हूँ ऐसे ही करना है. इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं, बच्चे को खुद को रिजेक्टेड फील करते हैं. हम आगे बात करेंगे कि बच्चे एक्सेप्टेंस फील करें, वो पेरेंटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चे की खुशी के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट. ये पूरा ऑपोजिट हो जाता है, बच्चे अपने घर में रिजेक्टेड फील करते हैं और बच्चे को कहीं से भी प्यार, हूंफ, एम्पैथी नहीं मिलते. एम्पैथी मतलब क्या कि हम सिंपैथी एम्पैथी दोनों में डिफरेंस है. एम्पैथी मतलब हम किसी का दर्द हम महसूस करें. हम वैसे बोलते हैं कि उनके जूते में अपने पैर डाल के हम देखें
कि एग्जैक्टली वो सामने वाला क्यों क्या हो रहा है। तो वो चीज़ का इसमें पूरा अभाव होता है। हम बच्चों को समझना ही नहीं चाहते कि बच्चे की लाइक क्या है, बच्चे की डिसलाइक क्या है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे का लिमिटेशंस क्या है। कुछ भी हो, मुझे तो बस आपको डॉक्टर बनना है, ये क्लास अटेंड करना है, 95% लाना है, ये मेरा ऑर्डर है, दैट्स ऑल। तो दिस इज ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। और आप समझ सकते हो कि ऐसा पेरेंटिंग करने से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होता है, बच्चे का एस्टीम का क्या होता है, बच्चे का खुद की कॉम्प्लेक्स क्या बन जाती है, और बच्चे आगे जाके कैसे हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट खो बैठते हैं, और कभी कभी पैराडॉक्स रिएक्शन आता है, होस्टाइल हो जाते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर की तरफ जाने लगते हैं, व्यसन करते हैं, भाग जाते हैं, गुनाहखोरी करते हैं, और कभी कभी बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। So harmful this parenting is, and we should never adopt this sort of parenting. और जाने अनजान में हमने भी कभी ये चीज़ की होगी, आपने थोड़ा याद करो कोई इंसिडेंस, कई बार हम भी ये थोड़ा इसका अंश दे देते बच्चों को ऑथोरिटेरियन का। वी शुड नेवर बी दैट। तो ये एक टाइप थी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। दूसरी है परमिसिव पेरेंटिंग। अरे मेरा बच्चा जो मांगे वो दे दो, उसने क्या, अभी भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, उसको मोबाइल चाहिए दे दो, उसको 15 साल में बाइक चाहिए दे दो, बेचारा वो कहाँ धूप में जाता है, अच्छी से अच्छी स्कूल दो, अच्छे से अच्छे घर में उसके लिए सब चीज़ें खरीद के दो, सब जगह एसी लगवा दो, वो मांगता है वो आधा बोले, वो पानी मांगे आप दूध दो, राइट। तो कभी कभी हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपने बच्चे के लिए ऑब्सेस हो जाते हैं या पैम्पर करते हैं बच्चे को। इसमें एक सब टाइप ये भी एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो बोलते हैं, आपने सुना होगा कि कोई माँ बाप तो पूरे बच्चे के आसपास पूरे दिन हेलीकॉप्टर की तरह घूमते रहते, क्या खाया, क्या पिया, क्या आया, क्या लगी, क्या हो गया, सोया कि नहीं, खाया कि नहीं, जल्दी आया कि नहीं, कहाँ गया, क्यों लेट हो गया, मतलब पूरा बच्चे पे हेलीकॉप्टरिंग करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे मैडम ने इनिशियली बताया कि बच्चे को हम इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। ऐसे बच्चे में रेजिलियंसी भी बहुत कम होती है, क्योंकि रेजिलियंसी के लिए बच्चे एडवर्सिटी फेस करे वो बहुत ज़रूरी है। और अभी जो कुछ इश्यूज खास करके एडोलेसेंट्स में हो रहे हैं, खास करके सुसाइड के इश्यू में जब हम बात करते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सुसाइड बच्चे इसलिए करते हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। भले पेपर में आते हो कि इसलिए किया, कि ये कारण से किया, कि फेल होने से किया, कि ब्रेकअप होने से किया, वट एवर, दैट इज नॉट द थिंग। द रूट लाइज इन अवर मानस, अवर साइकोलॉजी। और बेसिकली ये होता है कि द चाइल्ड इज अनेबल टू कोप अप विद द एडवर्सिटी। जो फेलियर या जो एडवर्सिटी लाइफ में आई उसको कैसे डील करे, उसको कैसे कोप अप करे, वो बच्चे ने सीखा ही नहीं। एक ऑलवेज वो पेरेंट्स की छत्र छाया में ही रहे। उसको पानी का ग्लास चाहिए तो भी मदर ला के देती थी, उसको कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होती थी, उसको कुछ भी चाहिए था तुरंत ला के उसको हाजिर किया जाता था। तो वो सीखा ही नहीं बच्चा कि कहाँ क्या एडवर्सिटीज होती है, उसको कैसे फेस करना। और ऐसे बच्चे पे जब सडनली कोई आफत आ जाती है तो ऐसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये भी एक पूरा टॉपिक है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है। सो फर्स्ट वाज ऑथोरिटेरियन, दूसरी था परमिसिव, थर्ड वन इज निग्लेक्टफुल पेरेंट। बहुत एज द नेम सजेस्ट, योर लाइफ योर विश। तेरे को जो करना हो कर, तेरी लाइफ है, तू पढ़, चाहे तो खेल, चाहे तो फेल हो जा, चाहे तो सोई रहे, चाहे तो कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना। मेरा तो लैपटॉप मेरे साथ, बस मैं फोन पे मेरा ग्रुप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे की कोई बात में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है कि बच्चे क्या होमवर्क करते हैं, बच्चे के फ्रेंड सर्कल क्या है, किसके साथ बच्चे आते जाते हैं, बच्चे क्या खाते पीते हैं, बच्चे को और लाइन पे तो नहीं चले गए, बच्चे को कुछ व्यसन तो नहीं हो गया, कुछ लेना देना नहीं। बच्चे की लाइफ होती है, करने दो, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये तो मोस्ट डेंजरस पेरेंटिंग स्टाइल है। ये बच्चे से आप कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और ये सोसाइटी में पीस को भी हार्म कर सकते हैं, और ये वायलेंस भी कर सकते हैं, ये सोसाइटी खुद को हार्म कर सकते हैं, दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत नुकसान होता है, और खुद का भी बच्चे खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, फैमिली को बर्बाद करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है कि निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कभी एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। बच्चे को मॉनिटरिंग करना, बच्चे को पॉजिटिव मॉनिटरिंग करना, हेल्प करना, ये हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी है। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग करने से बच्चे की साइकोलॉजी काफ़ी बिगड़ जाती है, शुड नेवर बी डन, राइट। लास्ट, और जिसपे हमारा पूरा आज का फोकस है, जिस पे रहने वाला है, वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। उसको डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग या एसर्टिव पेरेंटिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग, कुछ भी नाम दो। ये पेरेंटिंग स्टाइल है, वो आइडियली होनी चाहिए, और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी यही पेरेंटिंग स्टाइल से हम पेरेंटिंग करें। भले थोड़ा अंश कभी कभी ओवरलैपिंग होता हो, लेकिन आज से हम प्रयास करेंगे कि हम जो पेरेंटिंग करेंगे ऑथोरिटेटिव स्टाइल में करेंगे। एक लाइन में अगर समझना है तो व्हाट इज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग? योर ओपिनियन मैटर्स, लेट्स टॉक एंड गेट ए वे आउट ऑफ। बच्चों को साथ रख के अपने डिसीजंस में बच्चों को
अपने साथ लेके, उनका ओपिनियन लेके, उनकी राय लेके, उनको ठीक तरह से समझा के, प्यार से बैठ के बात करके हम कुछ नियम बनाने वाले हैं, जो कुछ रूल्स बनाने वाले हैं, जो कुछ डिसिप्लिन की बात करने वाले हैं, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करके बच्चों का वॉइस लेंगे, बच्चे की हर एक बात को इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चे की हर एक चीज़ को हम एक्नॉलेज करेंगे, तो दैट इज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। सपोज के एक मोबाइल आपको लाना है घर में, तो आप मोबाइल लाने से पहले ही नक्की करेंगे कि क्या नियम बनाएंगे, बच्चे को साथ में बिठाएंगे, देखो बेटा हम मोबाइल ला रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे एंटरटेनिंग चीज़ें भी आती है, लेकिन हम मोबाइल में इतना ही यूज़ करेंगे, अलाउड टाइम 2 घंटे का ही है, 2 घंटे से ज़्यादा हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चों की तभी टिक लो, वॉइस लो, बच्चा बोलता है ठीक है, फिर आप करो, देखो बच्चा ये पालेगा, क्योंकि जो नियम में, जो रूल्स में, जो बाउंड्रीज है, जिसमें बच्चों का खुद का हाथ है, वो बच्चा डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। तो ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है, जिसमें बच्चों की सेल्फ एस्टीम का पूरा ख्याल रखा जाता है, बच्चे की वॉइस है उसको पूरा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और बच्चे और माँ बाप साथ में मिल के नर्चरिंग करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग। इससे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे रेजिलियंट होते हैं, क्योंकि इसमें हम बच्चे को थिंकिंग के लिए प्रोवोक करेंगे कि भाई आप सोचो कि इसमें क्या करना चाहिए, बच्चे को ऑप्शंस के लिए हम मोटिवेट करेंगे, चलो अगर ये नहीं चीज़ है, ये नहीं होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चे का कुछ थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होगा, बच्चे में नेगोशिएटिंग स्किल है, बच्चे को डिसीजन मेकिंग है, बच्चे को सही गलत क्या है वो है, जो लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं। तो ज़्यादातर लाइफ स्किल्स बच्चे ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में सीख सकते हैं, अगर सही तरह से हम ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग करें तो, राइट। और इससे बच्चे लाइफ में आगे जाके अपने खुद का डिसीजन ले लेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, सेल्फ रेजिलियंट बन जाएंगे, और बच्चे ऐसे बच्चे खुश हो जाएंगे, अंदर से बच्चे खुश रहेंगे, और ऐसे बच्चे कभी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। तो ये शॉर्ट में पेरेंटिंग स्टाइल्स थी। तो अभी हमें ऑथोरिटेटिव पेरेंट बनना है। ऑथोरिटेटिव पेरेंट बनने के लिए क्या करना है वो थोड़ी टिप्स लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेके थोड़ी और बातें भी करेंगे, राइट। सो व्हाट कुड बी द आउटकम ऑफ ऑथोरिटेटिव पेरेंट। अगर हम ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग करते हैं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, जो हमारा गोल क्या होगा वो भी हम उसकी बात करते हैं। कि सबसे पहले जो हमने बताया हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट चाइल्ड, जो 2 वर्ड्स हमने पहले ही बात की थी, ये होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होता है, सेल्फ एस्टीम काफ़ी बढ़ता है, गुड सोशल स्किल्स बच्चे सीखते हैं, EQ हाई होता है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीड ऑफ द टाइम आज ये है कि बच्चे इमोशनली, जो बच्चों का क्वेश्चन है, इमोशनल हेल्थ है बच्चों की ऑप्टिमम रहे, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं, जो बुराइयां है, या जो एक्सीडेंट्स बच्चों में होते हैं, या सुसाइड्स होता है, या ड्रग एडिक्शन है, या जुवेनाइल डिलीक्वेंसीज है, या जो हिंसाखोरी है, एब्यूजेस है, चाइल्ड एब्यूज है, सेक्स एब्यूज है, सबके पीछे इमोशनल क्वेश्चन बहुत काम करता है। बच्चे अगर इमोशनली स्टेबल हो तो सब कुछ हो सकता है, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, बच्चा दुनिया जीत जाते हैं। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग देने से हम बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो लेट अस लर्न कि कैसे करें ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, हम करने बैठे तो 2-3 घंटे भी निकल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट करके उसको अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं, टेक होम मैसेज हम ले सके कि आज क्या हमने सीखा, या क्या सुना, या क्या नई चीज़ जानने मिली। तो मैं समझता हूँ कि 3 A आज हम याद रखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग आप एडॉप्ट करना चाहते हो और आप सही तरह से अपने बच्चों का नर्चरिंग करना चाहते हो, बच्चे को खुश देखना चाहते हो, तो 3 A। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट योर चाइल्ड, सेकंड वन इज एक्नॉलेज योर चाइल्ड, थर्ड वन इज अप्रिशिएट योर चॉइस। ये 3 चीज अगर होगी, अगर इसको लेके आप चलोगे तो डेफिनेटली आप एक बैलेंस पेरेंटिंग बच्चों, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके और आपके बीच में एक बॉन्ड, एक कनेक्टिविटी हमेशा रहे। ये बहुत अच्छा सेंटेंस अभी मेरे पास आया था कि द पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन is the most powerful mental health intervention known to mankind. So mental health के लिए जो सबसे बड़ा इंटरवेंशन कुछ हो, हम काउंसलिंग करवाते हैं, हम ये करवाते हैं, हम उसके साथ बात करते हैं, शेयरिंग, सब कुछ चीज़ है, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो लव बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे और बच्चों के बीच में, दैट इज द मोस्ट पावरफुल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। आपको कुछ करना हो तो हम सुसाइड में भी यही बात करते हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कनेक्टिविटी पे आपको फेथ है, उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखो तो आपको कम तकलीफें होगी। तो इसके बारे में थोड़ी आगे बात करते हैं। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि हम हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करें। अभी जब हम ये बात करते तो सबको बहुत थोड़ा सरप्राइज लगता है कि सब हमारा बच्चा है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा,
हम भगवान ने हमको दिया तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं ना, बट ये हमारा मानना है कि हमारे बच्चे को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपके बच्चे महसूस करते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम ये कोशिश करेंगे बच्चे कैसे महसूस करें कि हाँ मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस की फीलिंग आएगी ना तो बच्चा खुद खुश हो जाएगा। आज मानो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप थोड़े मुझे फीडबैक दो या थोड़ा इंटरेक्ट करो, तो मुझे एहसास होगा कि आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो वो मुझे कैसी फीलिंग देगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। सेम थिंग बच्चे के लिए है। अगर एक्सेप्टेंस बच्चों को मिल गया ना तो बच्चे दुनिया जीत जाते हैं। बच्चे की पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए, बच्चे की खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है हम बच्चे को फील कराएं कि यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई यूनिवर्स, राइट। तो वो बात करेंगे कैसे करेंगे, क्यों ज़रूरी है। सी, बच्चा हमको मिला है तो दैट इज़ अ गोल्डन गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। आप जानते हो कि सब दुनिया में सब पेरेंट्स ऐसे नसीबदार नहीं है कि जिसको बच्चे होते हैं, तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास बच्चा है, राइट। सेकेंडली, हमारी चॉइस थी, बच्चे जबरदस्ती से या हमें पूछ के नहीं आए हैं। हमारी चॉइस थी कि हमारी फैमिली में हमारे दोनों के बीच में एक बच्चा चाहिए और हमें बच्चे का नर्चरिंग करना है। सो इट वॉज अवर चॉइस। तो अभी वो मतलब नहीं है कि हम बच्चे को ब्लेम करें कि ऐसा क्यों है कि वैसा क्यों है। अने योर चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड, सी दे हैव नेवर कंपेयर विद एनीबॉडी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। भगवान की सृष्टि की रचना ऐसे कोई दो बच्चे एक तरीके नहीं होते, सब यूनिक होते हैं। तो आपका बच्चा आपके लिए यूनिक है, आपके लिए सर्वस्व है। सो इट इज योर ड्यूटी एक्सेप्टिंग योर चाइल्ड एज ही इज। इसमें काफी सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। मुझे बता सकते फोटोग्राफ में ये बच्चे को क्या है? इज ए नॉर्मल चाइल्ड? जो मैंने फोटो दिखा है स्लाइड में, बच्चा नॉर्मल है? डाउन सिंड्रोम है। यस, डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड, राइट। और फिर भी देखो बच्चा, हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम का बच्चे कैसे होते हैं, क्या होता है, तो उसकी माँ का प्यार देखो, उसके चेहरे पे खुशी देखो। सी, ये तो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, फिर भी उसको इतनी खुशी, इतना प्यार मिलता है। तो हमारा तो इंटैक्ट बच्चा है, हमें आपका पूरा अच्छा बच्चा भगवान ने दिया है, तो क्यों हम उसको प्यार ना करें, क्यों हम उसको एक्सेप्ट ना करें। हमने देखा है ये तो अच्छा है, डाउन सिंड्रोम में तो थोड़ी भी मेंटल आईक्यू होता है और थोड़े प्रोडक्टिव होते बच्चे, लेकिन हम तो ऐसे बच्चे भी देखे जो सेरेब्रल पाल्सी हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, ग्रॉस मेजर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो। 10-12 साल की लड़की को माँ ऐसा उठा के लाती है, हमारे आंख में से पानी आ जाते हैं। हमें पता है कि ये बच्चे क्या, इनके लिए क्या करेगा आगे जाके, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक नथिंग। फिर भी माँ बाप का प्यार, થોડા બચ્ચા અસ્વસ્થ લેકે આ જાય, સાહેબ જુઓ ને એને કંઈ તકલીફ લાગે છે, બચ્ચું આમ કરે છે, બચ્ચું ખાતું નથી, हमें लगता है कि इतना प्यार ये बच्चे पे, तो रियली यही प्यार हमें हमारे नॉर्मल बच्चे को देना है। विल एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड 10 times इन अ डे कि हमें इतना अच्छा, इतना इंटेक्ट बच्चा दिया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को एक्सेप्ट करें। कैसे करें? 2-3 टिप्स कि हाउ टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड और हाउ टू मेक योर चाइल्ड रियलाइज कि यू आर एक्सेप्टिंग हिम। तो नंबर 1 इज अनकंडीशनल लव। वेरी वेरी बहुत कॉमन टर्म है, आपने कई बार कहीं पे पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से एम्फेसाइज करता हूँ कि अनकंडीशनल लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लव शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस, ऑन अचीवमेंट्स, ऑन लुक्स, ऑन स्मार्टनेस। तो इतना मार्क्स लाएगा तो ही मैं ऐसा करूँगा, तो इतना करेगा तो ही मैं तेरे साथ बात करूँगा, तो ये होगा तो ही मैं करूँगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ पेरेंटिंग। दिस इज नॉट द ऑथोरिटेटिव वे। Should always respect your child limitations, your child abilities, your child likes and dislike, and accordingly you should build your standard के बच्चे को हमें कैसे करना है, क्या करना है। So this is very important कि बच्चे को अनकंडीशनल प्रेम देना है, कुछ भी हो जाए हमें बच्चे को ऐसा ही प्यार करना है जैसे हम पहले करते थे। कई बार हमने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा टाइम तो शायद है। हमारे सूरत में ही हमारे एक सीनियर पीडियाट्रिशियन है, तो उसके बेटे ने 12th की एग्ज़ाम दी। 12th की एग्ज़ाम के बाद तुरंत ही उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, काफ़ी लोगों को बुलाया। तो हमें थोड़ा सरप्राइज लगा कि रिजल्ट तो भी बहुत टाइम बाकी है ना, आपने पार्टी दे दी। तो रिजल्ट को जो आना है, और मेरे को रिजल्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो पार्टी इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे बेटे ने इतनी अच्छी मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, और बहुत इसने वो मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ, उसके लिए मुझे पार्टी देनी। सो सी, दिस शुड बी द एटीट्यूड। रिजल्ट कुछ भी आए, हमारे बच्चे ने मेहनत की, हमारे बच्चे ने एफर्ट्स किया, हमारे बच्चे ने उसके लेवल से काम किया है, दैट्स अवर ऑल गेन। और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दिस इज अनकंडीशनल लव। एंड नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर लव, लाइक हग्स, किस, टच, वर्ड्स, जेस्चर, जिसको हम बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये दवाई के डोज के जैसा TDS, BD, QDS ऐसा नहीं है। आपको जब मौका मिले, डोंट लूज और डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी गो अवे। बस स्कूल से आते हैं बच्चे, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हग योर चाइल्ड, किस योर चाइल्ड एंड से एक्सप्रेस दैट यू लव योर चाइल्ड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेक एंड ग्रांटेड ना ले लोगे, बच्चे समझते हैं ना कि हम प्यार करते हैं, सो बोलने की क्या जरूरत है, बोलना पड़ेगा। बच्चे को ये बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड है कि आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस टू योर चाइल्ड कि भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, यू आर माई वर्ल्ड, राइट। उसको किस करो, उसको टच करो, उसके पीछे हाथ घुमाओ, सोते समय उसके बाजू में सो, उसके पीठ पे हाथ घुमाओ। बच्चे को ये बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए दिस इज द वंडरफुल थिंग यू कैन डू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे को इमोशनल प्रोटेक्शन मिलता है। इमोशनल नीड बच्चों की फुलफिल होती है, क्योंकि हम फिजिकल नीड तो बच्चे को दे ही देते हैं, लेकिन बच्चे की जो इमोशनल नीड होती है, साइकोलॉजिकली जो एक्सपेक्टेशंस बच्चे के होते हैं, तो वो बच्चे को इसी से मिलेगा जब आप ऐसे सब जेस्चर्स करो और बच्चे को बेहद अनकंडीशनल प्यार करो। सो दिस विल गिव सम सॉर्ट ऑफ सेंसेशन बच्चों को कि बच्चा हमारा माँ बाप हमारे है और मेरे साथ हैं, चाहे भले स्कूल में साथ में नहीं हो तो भी उसको महसूस होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार हमें सामने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर એવું કીધું છે બહુ વધારે પડતું પ્રેમ કરીએ તો બાળક બગડી જાય, बहुत बच्चे को प्यार करते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। ऐसा नहीं है। वो किस तरह से प्यार करते हो, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल करते हो तो अलग चीज़ है, लेकिन रियल सेंस में प्यार करते हो तो कभी बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। बहुत अच्छा लिखा था ये एंटोनी विथम ने कि टू मच लव नेवर स्पॉइल्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिकम स्पॉइल्ड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट प्रेजेंस फॉर प्रेजेंस। आपकी जहाँ प्रेजेंस की जरूरत है वहाँ आप गिफ्ट देके बच्चों को अगर हील कर देते हो, सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट। ये मैंने आगे भी बताया कि हम अब आज रेट रेस में पड़े हैं कि इंजीनियरिंग में लेना है, मेडिकल में लेना है, IIT में जाना है, इतना तो आना ही चाहिए, इतने स्कोरिंग तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो उसको पढ़ाओ, उसको अच्छी अच्छी क्लास में रखो, देखो उसका बच्चा कितना आगे आ गया, उसके बच्चे को मार्क्स कितना आ गया। तो ये सब चीज़ से क्या करते हैं, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखने लगे। हम खुद नहीं कर पाए वो हम हमारे बच्चे में करना चाहते हैं। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन मेरा बेटा तो डॉक्टर बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनेगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं अच्छे से क्लास में उसको दूंगा, अच्छे से बुक्स ला के दूंगा, अच्छे से ट्यूशन रखूंगा, क्यों वो डॉक्टर नहीं बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सी, आपको बच्चे की स्किल, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की वीकनेसेस सबका एनालिसिस करके आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहाँ कौन से लेवल पे है। अगर बच्चे 10वीं 11वीं क्लास तक अगर 60, 65, 70% लाता था और सडनली वो 95 नहीं लाएगा 12th में, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। एकेडमिक एक्सेलेंस इज नॉट द ओनली वे फॉर द चाइल्ड फॉर टू डेवलप और टू सक्सीड। देयर आर अदर ऑप्शंस। और बच्चे की अपनी खुद की लाइक्स होती है, उस पर फोकस करो कि बच्चे को कहाँ अच्छा है, बच्चे किस में एक्सेल करते हैं, उस हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ाओ। क्योंकि ऐसा करोगे तो धीरे धीरे बच्चों में बिलीफ सिस्टम आ जाएगी कि मैं इन्फीरियर हूँ, मेरी वीकनेस है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, एंड दैट विल हार्म हिम फॉर द लाइफ टाइम। वो फिर जो चीज़ कर, उसकी जो पोटेंशियल है उसमें भी वो उसको सेटबैक आएगा, वो चीज़ भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस अगर आपको रखना है तो नेवर कीप ओवर एक्सपेक्टेशंस। बच्चे की जितनी एबिलिटी उतना ही करो। ये बहुत फेमस है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सेंटेंस है कि एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। आप झाड़ पे चढ़ने में सब एनिमल्स को बुला के उसकी काबिलियत आप एसेस करो तो डेफिनेटली सबको, खाली बंदर के अलावा सब सोचेंगे हम स्टूपिड है, हम तो झाड़ पे चढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन नेवर। मैंने बोला कि सब बच्चे यूनिक है, शुड नेवर कंपेयर। सोचो अगर आपके साथ आपकी कंपैरिजन होती है तो आपको कैसा लगता है, राइट। कई बार हमारा मोटिव अच्छा होता है, हम उसको इंस्पायर करना चाहते हैं कि देखो इसका मार्क्स कितना है, ये कितना पढ़ता है, ये कितना अच्छी तरह से डिसिप्लिन वे में रहता है, पर बेसिकली इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कंपैरिजन ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। इट क्रिएट्स नेगेटिविटी, इट क्रिएट्स जेलसी, राइट। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन मत करो। आपका बच्चा, अगर कंपैरिजन करना है तो खुद से करो, उसको बच्चे के साथ ही बच्चे की कंपैरिजन करो। उसका पास्ट में देखो कि 10th में आप 60% लाए, बेटा थोड़ी मेहनत करो, हो सकता है 11th में आप 65 लाओगे, 70% लाओगे, आप और एक्सेल कर पाओगे, थोड़ी मेहनत और करते हैं। फिर ऐसी थोड़ी मोटिवेशन देके खुद के साथ कंपेयर करके बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कभी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत करो, इससे बच्चे बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, बच्चे को बहुत साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगता है, बच्चे को खुद को ऐसा बच्चे को लगता है कि जैसे मेरे में कुछ नहीं है और सेल्फ एस्टीम घुमा देते। सो नेवर डू कंपेयर। और बच्चे रिजेक्टेड फील होते हैं, बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा वो फ्रेंड है वो अच्छा मार्क्स लाया ना, मेरे मम्मी पापा को वही पसंद है, मैं पसंद नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा जो थीम है उसके पूरे ऑपोजिट है
कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ चाइल्डहुड जॉय, जो हम नहीं करना चाहते। पेरेंटिंग फॉर पीस में हम बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, उसका खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। सो नेवर कंपेयर, दैट विल गिव द सेंस ऑफ रिजेक्शन इन द चाइल्ड, सो इट विल नेवर क्रिएट ए बॉन्ड बिटवीन यू एंड चाइल्ड। हम हमारे सपने बच्चों के साथ पूरा करवा के हम देखना चाहते हैं, जो हम नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैं डॉक्टर नहीं बना लेकिन मेरे बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए। बहुत अच्छा एक कार्टून था लेकिन बहुत अच्छा मैसेज था इसमें। जो हाथी है वो अपने बच्चे को बोलता है कि सन, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू, यू आर 1 year old and you still don't know how to fly. Look at Mr. Eagle's son, he is already so good at it. I am telling you this because I want you to fulfill the dreams which I could never achieve. तो बच्चा बोलता है, I am sorry dad, I will try my best. So ये हमारे सबके बच्चे आज, हम चाहते हैं बच्चों के पास वो ड्रीम्स, वो सपना पूरा करने के जो हम नहीं कर सके, और फिर बच्चा ऐसे सॉरी बोल के, इन्फीरियर फील करके, नेगेटिव होके हमारे सामने खड़े रहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लेम नहीं करना है कभी बच्चों को। हम यूजुअली जाने अनजान से हम कुछ भी होता है तो हम ब्लेम बच्चों पे डाल देते हैं। एक इसका बहुत एक अच्छा एक जोक था, एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास से मैंने सुना था कि एक लेडी थी, यंग लेडी, वो खुद कहीं किटी पार्टी में जाने के लिए कुछ श्रृंगार कर रही थी। वो जो टेबल था, ड्रेसिंग टेबल, उसके सामने बैठ के काजल लगा रही थी, टीका लगा रही थी, अच्छे कपड़े पहन के बन रही थी। छोटा बच्चा था उसका, 5-6 साल का। वो देख रहा था कि मम्मी तैयार होती है, कहीं जा रही है। लेकिन जैसे हमारे वहाँ तो मार्शल लॉ होता है, बच्चे कुछ पूछ नहीं सकते, पूछेंगे तो एकदम माँ बाप टूट पड़ते हैं ना। फिर भी बच्चे ने हिम्मत करके, बच्चे माँ का नजदीक आया कि माँ क्या करती हो। माँ बोलती नहीं, मेरे को बाजना है, मैं रेडी होती हूँ, तू तेरा काम कर, मेरे को नहीं पूछने का क्या करती हो, मेरे बीच में नहीं आने का। ठीक है। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि माँ एकदम उदास हो गई। सडनली उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ गई, थोड़ी निराश हो गई, उसका चेहरा उतर गया, और बच्चे ने महसूस किया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कि मेरी माँ एकदम गंभीर हो गई है। तो फिर से उसने आके, बच्चे क्या है कि उसको सवाल तो बहुत पूछने होते हैं, बच्चे कभी छोड़ते नहीं बात को, जब तक वो खुद कन्विंस नहीं होते तब तो पूछते ही रहते। वापस मम्मी के पास आएगा, मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी बोले, नहीं तेरे को क्या है जानने से, तू जा, तेरा काम का दुख है। 2-3 बार ट्राई किया, फिर लास्ट में मम्मी बोली कि तेरे को जानना है मेरे को क्या हुआ, मैं क्यों दुखी हूँ। तो बोले मम्मी क्या हुआ। तो बोले मैं आज मेरा बाल संवार रही थी ना, तो मुझे एक छोटा सा सफ़ेद बाल मुझे इसमें दिखा, और मेरे को सफ़ेद बाल आ गए, उससे मैं बहुत दुखी हो गई, इसलिए मेरा चेहरा उदास हो गया। तो बच्चे ने सुन लिया, बाहर गया बच्चा। फिर बच्चे को फिर भी ऐसा सवाल आया कि सफ़ेद बाल क्यों हुए, क्यों ऐसा हुआ। बच्चा तुरंत वापस आया कि मम्मी क्यों आपके बाल सफ़ेद हो गए। फिर मम्मी ने थोड़ा गुस्सा किया, फिर मम्मी बोली कि तेरे को जानना है क्यों सफ़ेद हुए। बोले मेरे बाल तो बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे, काले थे, घने बाल थे, लेकिन जब से तेरा जन्म हुआ ना, तेरे पीछे मैं इतनी काम में लग गई, तेरे पीछे मैं इतनी थक जाती हूँ, तो मुझे इतना परेशान करता है कि मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए। देखो पूरा ब्लेम बच्चे पे डाल दिया। ये बच्चे को क्या महसूस होगा, क्योंकि पेरेंट्स को जब दुखी देखता है ना बच्चा, तो बच्चे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चे की पूरी तमन्ना होती है, पूरी सिक्योरिटी पेरेंट्स को दिए होते हैं कि पेरेंट्स है मेरे साथ, बस मेरे को कुछ नहीं होगा। पर जब पेरेंट्स खुद परेशान हो जाते हैं तब बच्चे बहुत इनसिक्योर होते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से हुआ, तो ये बहुत बच्चे में गंभीर असर कर सकता है। तो बच्चे थोड़ी देरी साइकोलॉजिकली हर्ट हुआ, लेकिन बच्चे की अपनी तार्किक बुद्धि भी होती है ना, तो यहाँ पे जोक के पार्ट है कि इसको थोड़ा जोक में कन्वर्ट किया है। फिर कि बच्चा फिर आके बोला कि मम्मी मैं एक बात करूँ। मम्मी बोले क्या, अभी क्या हुआ। तो कि अभी मुझे पता चला कि मेरी नानी के बाल क्यों सफ़ेद है। तो ऐसी बात भी होती है। तो ये तो जस्ट मैंने जोक बोला, पर बच्चे को ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि कुछ भी होता है ना बच्चे की वजह से, ऐसा कभी मत करना। इससे बच्चे बहुत गिल्टी फीलिंग करते हैं, बच्चे को साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी इंजरी होती है। जैसा ये बहुत अच्छा कार्टून था कि मारू અને નરેન્દ્ર મોદીની કિસ્મત એક જેવું જ છે। દેશમાં કંઈ થાય તો મોદી અને ઘરમાં કંઈ થાય તો મારું નામ આવે। जैसे देश में कुछ भी होता है तो मोदी ने किया, घर में कुछ भी होता है तो बच्चा सोचते मैंने किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। और ये जो लास्ट पार्ट है मेरे टॉक का, और बहुत इंपॉर्टेंट अनफॉर्चुनेटली इट कम्स लास्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया ना तो हमारा काफ़ी कुछ पेरेंटिंग का काम ईजी हो जाता है। कि एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, उस एग्जांपल से हम समझेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे डायरेक्टली थोड़ा थ्योरेटिकल लगेगा। कि बच्चा मानो कि शाम को स्कूल से आता है, राइट, और आने के बाद बच्चा रोता रोता स्कूल में से आता है। बच्चे के कुछ स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बच्चा रोने लगा और रिक्शा में से उतर के रोते रोते माँ के पास आता है। जैसे माँ के पास आया तो माँ बोलते क्या हुआ, क्यों आज रोता है। तो बोले मम्मी
मेरा कंपास खो गया, तो मम्मी गुस्सा चालू कर देगी, कंपास खो गया, तेरे को शर्म नहीं आती है, चौथा कंपास है, तू हर महीने एक कंपास खो लेता है, कितना महंगे कंपास आता है, मैं तेरे को कितने कंपास दिलाऊं, ये तो रोज की रामायण है, तो एक कंपास खो के आता है। और हम चालू पड़ जाते हैं, राइट। बच्चा रोता है, फिर देखता है कि अभी क्या, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो ये क्या किया, ये हमारा रिस्पॉन्स कैसा था, ये हमारा रिएक्शन कैसा था, बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल अयोग्य था। हमें क्या करना चाहिए था, मुझे कोई कह सकता है कि हमें क्या करना चाहिए था जब बच्चे ऐसा रोते रोते आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए था? व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स? I think we should pacify the child by saying कोई बात नहीं है, कंपास तो आ जाएगा, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि ये बार बार क्यों गुम होता है, तुम आ जाओ, खाना खा लो, ड्रेस चेंज कर लो। खाना खा लो, ड्रेस चेंज कर लो, बराबर। और कुछ? अच्छा, ठीक है, थोड़ी बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा हम उसको डिटेल में टेक्निकली समझेंगे कैसा करना है। कि देखो, जब बच्चा रो के आते हैं, रोते रोते आते हैं, तो बच्चे इमोशनली, बच्चे को क्या हुआ है, बच्चे को एक नेगेटिव फीलिंग्स आई है, बच्चे के इमोशंस हर्ट हुआ है, बच्चे की कुछ चीज गुम गई है, बच्चा दुखी है, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, बच्चे को कंसोल करना, जैसे मैडम ने बताया। तो हम बातें करके या रिएक्शन देके अननेसेसरी चर्चा में नहीं जाना, हम बच्चे को पहले उसकी जो फीलिंग्स हुई है, उसको जो दुख हुआ है, उसको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेजिंग फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज योर चिल्ड्रन मे नॉट रिमेंबर व्हाट यू सेड, बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। और एक बार बच्चे गलत फील करते हैं ना, वो लाइफ टाइम बच्चे को याद रहता है। कभी बच्चे को कोई गलत फीलिंग नहीं दो। तो बच्चे जब ऐसे आते हैं, रोते रोते आते हैं, तो आपकी फर्ज ये है, पहले तो खाली बच्चे को बिठा के, बच्चे को जो दुख हुआ है वो दुख को महसूस करे। एम्पैथेटिकली बच्चे के सर पे हाथ घुमाओ, बच्चे के पीछे हाथ घुमाओ, बच्चे को पानी का ग्लास दो, है? फिर बच्चे को शांति से पूछो कि बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो आप, राइट। फिर बच्चा बोलेगा मेरा कंपास गुम हो गया, तो हमारा रिस्पॉन्स भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को, ठीक है अभी कंपास गुम गया, आप नया दिला दो, वो इश्यू नहीं है। आप बच्चे को तो क्या ऐसा रोता है छोटी छोटी, चल तेरे को नया दिला देता हूँ, चल अभी ऐसा होता है। या कभी ऐसा बच्चा बोलता है कि मेरा कंपास चोरी हो गया, चल किसने चोरी किया, किसके, चल फादर के पास जाते हैं, चल प्रिंसिपल को पूछते हैं, पेरेंट्स को बुलाओ स्कूल में, ऐसा क्यों हुआ, और बड़ा हंगामा आप कर दोगे। इससे क्या बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया बोल के, क्योंकि इतना हंगामा घर में और स्कूल में हो जाता है, बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मेरे माँ बाप इतने एक्साइट हो गए, इतने गुस्सा कर दिया, इतना स्कूल में चले गए, मेरा रिलेशन खराब कर दिया, मैं सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर बच्चे क्या करेंगे, जब ऐसे बच्चे दुखी हो गए ना, तो दूसरी बार आके माँ को नहीं बोलेंगे कि ये चीज हुई है। अगर हम हाइपर रिएक्टिव होते, हमें हंगामा कर देते, तो बच्चे विल नेवर टेल अस कि अपने साथ क्या हुआ। तो ग्रेजुअली बच्चे विल स्टार्ट कर्विंग देयर इमोशंस, दे विल नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस। और ये सप्रेस करते इमोशन, दैट इज द वर्स्ट पार्ट इन साइकोलॉजी। जितना इमोशंस बच्चे एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना बच्चा इमोशनली ज़्यादा हेल्दी, इमोशनली ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। अगर वो अपने इमोशंस कर्व करते रहेंगे, ऐसे बच्चे में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और ये इमोशंस के ब्लास्ट जब होता है तब बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की जो कुछ इमोशन, जो कुछ फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस होने दो। डोंट गो बिहाइंड कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे किसने किया, क्यों किया, इसके साथ हम रिवेंज लेंगे, इसको बोलेंगे, इसके नथिंग। सी अभी बच्चा दुखी हुआ है, वो दुख को आप फील करो, एम्पैथेटिकली फील करो, और उसको उसके साथ बात करो, उसको बोलने दो, जो बोलता है वो बोलने दो। हम थोड़ी आगे बात करेंगे कि दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे की फीलिंग एक्नॉलेज करें। कैसे एक्नॉलेज करें, तो उसका पहला स्टेप है कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बहुत कॉमन वर्ड है, हमने काफी बार सुना है, लेकिन स्टिल हमें इतना, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन लिसनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल डेवलप करने के लिए। इसके लिए तो पूरे 2-3 दिन का वर्कशॉप होता है, कैसे एक्टिवली सुने। तो ये एक मैडम ने बहुत अच्छा कहा था कि व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, कान से नहीं पर दिल से सुनना है। व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट ना, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। कैसे, तो हम आगे थोड़ी और बात करेंगे। और एक्टिव लिसनिंग चाइल्ड नर्चरिंग में या चाइल्ड साइकोलॉजी में इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट इज सेड, एक राल्फ निकोल्स ने बोला है कि द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन इज टू लिसन टू देम। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को आपको समझना है, तो बच्चे को सुनना शुरू कर दो। हाँ, जैसे हमने शुरुआत में देखा ना कि सबकी एक कंप्लेन होती है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, बच्चे हमारी सुनते नहीं है। तो एक बार एक सेमिनार था और सब बोल रहे थे हमारी सुनते नहीं, हमारी सुनते नहीं। तो हमने जब उनको पूछा, पेरेंट्स को, कि क्या आप अपने बच्चे को सुनते हो, आपने कभी बच्चे को सुना? हमारे पास तो वक्त ही कहाँ है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, बच्चे दिन में काफ़ी सारा टाइम 6-8 घंटे स्कूल में निकालते हैं, और बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं,
और बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, काफ़ी कुछ बातें सोचते हैं, काफ़ी कुछ बातें बनाते हैं, और स्कूल में से आते हैं तो बस उनका एक इमोशनल नीड ये होती है कि वो कैथारसिस के लिए उसको कुछ बोलना है, बस कुछ एक्सप्रेस करना है, और सामने चाहिए कोई सुनने वाला कि मेरे सामने बैठ के मुझे सुने। तो अगर वो उसको सुनने वाला नहीं मिलता है, वो कैथारसिस नहीं होता है, इसलिए बच्चे सप्रेस हो जाते हैं। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बच्चे को जस्ट सुनो, उसकी बात हो सकती है रिलेवेंट हो, नहीं रिलेवेंट, इट्स ओके, आपका काम है उसको एक्टिवली सुनना। अगर आप सुनते भी हो ना तो बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा बूस्टअप है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है अगर ध्यान से उसकी बात सुनी जाए तो। हम भी देखो, हमारी बात कोई ध्यान से सुनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं सुनता है तो प्रोफेसर और सब टीचर्स लोग को तो मालूम है जब बच्चे सुनते नहीं तो हमारी हालत क्या होती है। सो एक्टिवली सुनना वो सबको अच्छा लगता है, तो अगर आप एक्टिवली सुनते हो तो बच्चे को साइकोलॉजिकली काफ़ी हेल्दीनेस आती है और बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से सोच सकते हैं और अच्छे विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को सुनना है। और जब बच्चा दुखी होता है, बच्चे की फीलिंग्स जब हर्ट होती है, जैसे आगे बात की, तो उसके लिए सबसे बड़ा फर्स्ट एड, जैसे फिजिकल इंजरी के लिए फर्स्ट एड होता है, जैसे इमोशनल इंजरी होती है, साइकोलॉजिकल इंजरी होती है, तो उसके लिए फर्स्ट एड होता है कि आप बच्चे को सुनो। सुनना इज द बिगेस्ट प्राइमरी फर्स्ट एड केयर फॉर द साइकोलॉजिकल इंजरीज। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को खाली सुन लो, आप कुछ नहीं बोलो, कुछ आंसर मत दो, खाली सुनो, तो भी बच्चों का 50, 60, 70% जो ट्रॉमा होता है ना वो कम हो जाता है, वो हील हो जाता है। इतनी ताकत सुनने में है। तो आज से ठीक से सुनना सीखो। कैसे सुनने का सबको मालूम है कि आई कांटेक्ट रखना है, अटेंशन से सुनना है, हाथ में मोबाइल रख के, न्यूज़पेपर हाथ में रख के मोबाइल से बात करते करते नहीं सुनना है। और जब बच्चा बोलता है ना उसको इंटरप्ट नहीं करो। एक बहुत अच्छा एक एडोलेसेंट का लेटर हम कभी एडोलेसेंट सेशन में दिखाते हैं, उसमें बहुत अच्छा लिखा है कि उसके पेरेंट्स को बच्चे ने लिखा है कि आई एम आस्किंग यू टू लिसन मी, not I want your suggestion, not because I want your opinion, not because I want the solution, not because I want your judgment. कुछ नहीं चाहिए बच्चों को, सुनना ही उसकी इमोशनल नीड है। तो वी नीड नॉट इंटरप्ट हिम, वी नीड नॉट अपने ओपिनियन नहीं ढाएंगे, हाँ ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, तूने ऐसा क्यों किया, तेरी तो आदत ही है, ऐसा क्यों करता है, तेरे को नेक्स्ट टाइम तेरे को ऐसा कर देने का, सामने 2 तमाचा लगा देने का, ऐसे मार खा के क्यों आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। शांति से सुनो, बस सुनना ही जरूरी है। कोई सॉल्यूशन भी नहीं दो। बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने थॉटफुल होते हैं कि वो एंड में खुद कभी कभी सॉल्यूशन दे देते कि कल से मैं ऐसा करूंगा, जब मैं वॉशरूम जाऊँ तो मैं कंपास बैग में रख के जाऊंगा, तो मेरा कंपास चोरी नहीं होगा, कल से मम्मी मैं ध्यान रखूंगा। खुद बोल लेंगे, पर कब उसको इमोशनल कैथारसिस हो जाता है बाद में, जब बातें कर लेते हैं वो हल्के हो जाते हैं, बाद में वो खुद अपना सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, बच्चे को जज नहीं करना है, और कोई प्रकार की एडवाइस नहीं देनी है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछनी है। हम आके बोलते खाना खाया, ऐसा किया, होमवर्क किया, ऐसा कुछ नहीं। बेटा क्या, लेट द चाइल्ड डिस्क्राइब द थिंग्स। ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा उसको इमोशनली कंफर्ट लगेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को एक्टिवली लिसन करें, बिकॉज दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जब यह महसूस करता है कि आई एम अंडरस्टूड, दैट कंफर्ट्स द चाइल्ड। बस मेरे को जो फीलिंग्स आई, मेरे को जो नेगेटिव इमोशंस मिले, मैं जो फील कर रहा हूँ वो मेरे पेरेंट्स ने फील किया, दैट्स ऑल। बच्चे की सब समस्या हल हो गई। सो हम ऐसा माहौल दें कि बच्चे खुद ऐसा सोच सके कि आई एम अंडरस्टूड। और जिस दिन बच्चे को ये एश्योरेंस मिल जाएगा कि आई एम अंडरस्टूड, उस दिन बच्चे ये पक्का सोचेंगे कि आई एम फुली एक्सेप्टेड टू माई पेरेंट्स। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए सब कुछ हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छा एक सेंस है कि यू हैव 2 ears and 1 mouth, तो यूज देम प्रोपोर्शनेटली। ज़्यादा सुनो, कम बोलो। और कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो ये भी बहुत हम बात करते हैं कि द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड बट वी लिसन टू रिप्लाई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबका है, हमारा तुम्हारा सबका यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हम जब भी सुनते हैं ना तो हमारे मन में पहले तो रिप्लाई आने लगता है कि इसको क्या जवाब दूं, ये बोलूं, ये कर दूं। सुनने की बात साइड में हो जाती है। इट इज अ रॉन्ग अप्रोच, शुड नॉट बी लाइक दैट। जैसे मैंने आगे बताया सुनना क्यों जरूरी है, बहुत अच्छा लिखा है कि भाई वी शुड हियर द चिल्ड्रन, लिसन अर्नेस्टली टू एनीथिंग योर चाइल्ड वांट टू टेल यू, एनीथिंग, मे बी रिलेवेंट, मे बी नॉट रिलेवेंट, मे बी लाइकिंग टू अस, मे बी नॉट लाइकिंग टू इट, बट वी शुड लिसन भाई, नो मैटर व्हाट इज, बिकॉज इफ यू डोंट लिसन ईगरली टू द लिटिल स्टफ, ये छोटी छोटी बातें अगर आप ठीक से आज नहीं सुनोगे जब वो छोटे थे तब, तो दे वोंट टेल यू द बिग स्टफ व्हेन दे आर बिग। जब वो बड़े हो जाएंगे तो बड़ी समस्या में फंसेंगे तो भी आपको नहीं बताएंगे। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी समस्या है। जो कोई मेंटल प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं एडोलेसेंस में, एडल्ट्स में,
उसका रूट प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील, राइट। सुसाइड क्या है, हम बात करते हैं कि सुसाइड इज ए क्राई फॉर हेल्प। बेसिकली वो रूटीन कम्युनिकेशन में हमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि हमें क्या तकलीफ है, उसको रियली मरना नहीं होता है, जान उसको भी प्यारी है, लेकिन व्हाई दे कमिट सुसाइड, बिकॉज दे फेल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उसको क्या तकलीफ है। दे आर नॉट एबल टू बी कम्युनिकेटिव विथ यू, और यू आर नॉट गिविंग दैट प्लेटफॉर्म कि वो आके आपके सामने बात करे। और इश्यू यही होता है, चाइल्डहुड में ऐसे ऐसे रिएक्शंस उन्हें मिले हैं, ऐसे ऐसे फीलिंग्स उनके सामने आई है कि दे फॉरगॉट कि हाउ टू कम्युनिकेट, और बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज देयर इज अ इमोशनल सेपरेशन, ऐसे बच्चे फिर कभी कभी ऐसे गलत स्टेप ले लेते हैं, बिकॉज टू देम ऑल ऑफ इट हैज ऑलवेज बीन अ बिग स्टेप। बच्चों के लिए भले छोटी बात हो, भले निगाह में हंसी आती कि ये बात में क्या यार रोने लगा, पर बच्चों के लिए वो बात सबसे बड़ी होती है, उनके लिए सब कुछ बिग स्टेप है। सो ऑलवेज लिसन टू देम। लास्ट 1 or 2 things I will conclude my session, almost 4:45 बजे। एप्रिसिएशन, सबको मालूम है कि एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, हमें भी एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, इट गिव्स अस मोटिवेशन, राइट। एंड जैसे एप्रिशिएट हमेशा ऐसा करो, एप्रिसिएशन का भी एक लॉ है कि कैसे करने का, आपको रॉन्ग प्रेज नहीं करना है, जेन्युइन प्रेज करना है। हमारा तो वैसे यू आर प्लेइंग लाइक सचिन तेंदुलकर, आप तो सचिन तेंदुलकर ऑलवेज फर्स्ट, आप कभी भी क्लास आते हो फर्स्ट ही होते हो, यू आर द फर्स्ट रैंकर, ऐसा नहीं है। हमें व्यक्ति को लेबल नहीं लगाना है, उससे कभी इश्यू होता है। अगर टॉपर करते हो, टॉपर जब टॉपर नहीं आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो कुछ भी गलत स्टेप ले सकता है, तो कभी ऐसा उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। जैसे मैंने आगे एक एग्जाम्पल दिया, जो मेहनत की उसको अप्रिशिएट करो कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपका एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क। नहीं कि यू आर रैंकर और तू तो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, तो फर्स्ट ही आता है, ऐसा नहीं। वो कभी कभी बच्चे को आगे जाकर परेशान कर सकता है। और देयर इज अ वे टू अप्रिशिएट। सी हम कभी कभी एक्सेलेंट, ऑसम, क्या बात है, ऐसा बच्चे भी कुछ आके हमारे पास आते हैं ड्राइंग लेके करके, देखो देखो मैंने कैसा बनाया, बस बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छा है, रख दे अभी, ऐसा नहीं। यू हैव टू डिस्ट्रिक्टिवली प्रेज द एफर्ट, तो वो बच्चे को ज्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर सकता है। जो बच्चा लाता है उसको डिस्क्राइब करो आप क्या देखा है, वो देखने से आपको क्या लगता है। बच्चे अच्छी तरह से अपने रूम साफ किया तो आप डिस्क्राइब करो, आई सी द क्लीन फ्लोर, स्मूथ बेड, बुक्स नीटली लाइंड अप ऑन द शेल्फ, इट्स प्लेजर टू वॉक इनटू योर रूम, ऐसी बात कर सकते हो। एंड देन से क्या ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी स्किल बहुत अच्छी, आई अप्रिशिएट दैट। सो दिस इज द वे हाउ अप्रिशिएट। सो राइट वे में अप्रिशिएट करोगे तो ही उसका इफेक्ट आएगा। एप्रिशिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जैसे पेरेंटिंग में हमें देखा, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छी चीज हो, सबसे अच्छी की हो, तो बच्चे को अप्रिशिएट करो। और खास करके बच्चे को दूसरे के सामने आप बच्चों की तारीफ करो, वो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई पेरेंट आजू बाजू वाले नेबर्स आते हैं, उसके सामने अगर अपने बच्चों की तारीफ करो, वो बच्चे सुनते हैं कि मेरी तारीफ हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छा असर बच्चों में होता है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पेंडिंग मनी ऑन चिल्ड्रन, राइट। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी, इतना सब आप जानते ही हो, जस्ट नरेट कर देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा कार्टून था कि इफ यू सी माय मॉम ऑन फेसबुक प्लीज रिमाइंड मी दैट आई एम स्टिल इन द सिंक। हम इतने सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चे की हमें ध्यान ही नहीं रहता बच्चा कहाँ है। बच्चा बेचारा बोलता है मैं सिंक में हूँ, मम्मी को रिमाइंड कराओ। लास्ट एक बहुत अच्छा इमेज मैंने अभी मेरे हाथ में, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक आदमी है, उनके 2 बच्चों को लेके नदी किनारे है। नदी में आप उसका अगर शेडो देखो, उसका प्रतिबिंब देखो, तो उसमें 2 बच्चे हो बड़े और बीच में छोटा उनका फादर है, छोटा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम रोल मॉडल बने। आज हम बच्चे की ऐसी परवरिश करें, बच्चे में ऐसे संस्कार का सिंचन करें कि आज के वक्त में जब हम उम्र वाले हो जाएंगे, हम एजेड हो जाएंगे, तो बच्चे हमें भी हाथ पकड़ के चलेंगे, हमें भी हाथ पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे, हमारी पूरी देखभाल करेंगे। आज जो जनरेशन गैप हम देख रहे हैं कि माँ बाप को बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे केयर नहीं करते, लेकिन उनका पेरेंटिंग कुछ ऐसा होता है कि वो जो वैल्यूज का सिंचन है वो उसमें हुआ ही नहीं है, उसने वो एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया, ये करना चाहिए। तो आज से अगर हम रोल मॉडलिंग करके हम ऐसा केयर, ऐसा कंसर्न, ऐसा अप्रोच, ऐसा बिहेवियर करेंगे, तो बच्चा डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम वाला बनेगा। और ये एल्विन प्रिंस ने कहा है कि पेरेंट्स नीड टू फुलफिल अ चाइल्ड्स बकेट ऑफ सेल्फ एस्टीम सो हाई दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कांट पोक इनफ होल्स टू ड्रेन इट। हम एक कवच बना दें हमारे प्रेम का, हमारा कंसर्न का, हमारा इमोशनल सिक्योरिटी का, ऐसा पावरफुल दीवार बना दे कि उसमें पूरी दुनिया आके भी छेद करे, कैसे भी एडवर्सिटीज आए, तो बच्चे के जो सेल्फ एस्टीम का कवच है उसको बिल्कुल डैमेज नहीं हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट्स ऑल। मैंने बहुत फास्ट थोड़ा कवर अप किया है। लास्ट सेंटेंस खाली मैं एक कैरी होम सेंटेंस देता हूँ कि व्हाट शुड नॉट बी हर्ड बाय लिटिल ईयर्स शुड नॉट बी सेड बाय आवर बिग माउथ्स। सो बहुत संभाल के, बहुत कॉन्शियसली, बहुत माइंडफुली
हमें सब चीज बोलनी है, हमें बिहेव करना है। याद रखो बच्चे आपको सुनते भले ना हो, लेकिन आपको 24 घंटे देखते हो। आपको देखने से वो ज्यादा सीखते हैं, आपके सुनने से कम सीखते हैं। तो बी वेयर, आप जब भी कुछ बिहेवियर करो, जब भी कुछ बोलो बच्चे के सामने, तो एफिशिएंटली एक्सेप्टिंग टोन में विथ फुल लव और विथ फुल अंडरस्टैंडिंग बात करो, तो बच्चे को आगे जाके उसकी गलत इम्पैक्ट नहीं हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश की कि पेरेंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताऊं। मैंने ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग कैसे करना है, तो उसमें ये सब चीज़ अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करके आप अगर बच्चे के साथ व्यवहार करोगे, तो बच्चे विल ऑलवेज फील कि माय पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग मी एंड आई एम ए पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। आई एम मेरे वोट है उसका इम्पोर्टेंट है, मेरा महत्व है मेरे घर में। बच्चे को फीलिंग आएगा और बच्चे खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir, for giving your excellent insights about parenting. I am sure that all the participants have immensely benefited from this session. Thank Now you. we can take up some questions as we are Definitely. yeah. Anyone can switch on their mic and ask questions. We have few minutes to take up few questions. Hello, sir. Good evening. Dr. Manisha here. Good evening. Am I audible, sir? Yes, you are audible, but you are not visible. Okay, sir. I will try to start video. Okay, Okay, sure. sir. Hello, sir. Thank you. So, it was excellent talk. I am very you. happy to listen you, and hope we look forward to have a more such session in future, because it is a really need of such Need of session the time, yes. at everywhere, not yet our institute for parenting. But I think mobile addiction is the most important issue nowadays. So this is the just we can if we can plan in future, because every mother very good has the module same. for that also. Yeah. Okay, sir. So there's a whole 2-hour session on media addiction. So. Okay, sir. Okay, so but your session was excellent, very nice, like types of parenting, and I really appreciate your 3A, and we will try to remember the same things. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Very happy excellent. That it had made some difference in you. Thank you. Definitely, sir. Thank you. Any question? Sir. Yeah. Sir, I would like to just add one thought which I keep on telling myself. I really like that quote from Mr. Khalil Gibran, that our children are actually not our children, and they have been sent to us, and we are just like gardeners who are responsible for nurturing taking care of the plants. And we have to just આપણે ખાલી ખાતર હવા પાણી મળે ધ્યાન રાખવાનું છે. Same as plant. Yes. So because ultimately, like you said, they should be affectionate human beings taking care of the family members. I would just like to take a step ahead that not only the family members, they should also know that they are part of the society, they are part of the universe, and not only human beings, even we are human beings are part of the whole universe, the plant kingdom, the animal kingdom. All the creatures are ultimately God's creations, and every creation has to be respected. So I think by proper parenting, as far as I feel, I feel to do that thing, I think my parenting would be successful as a mother. Even Osho Rajneesh had said one कि आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया, बाद में you lose the authority. See, it is not your property. It's nature's property. Your duty is only to just take care of them. That's all. You should not bombard the things that you want. You should not be authoritarian. That's what the message was. Thank you, ma'am. Thank you so much. Any other questions? Yes, Archana ma'am. Sir, just to conclude with मतलब आपके जो words है कि our goal should be to make our children happy and indirectly make the world happy. World happy. World peace. Happiness and peace both go simultaneously. If everybody are happy, there will be peace. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. So I would any other questions? I think no questions in chat box, no? Just
I think it's, I would now request the Provost of Bhaikaka University and Chairperson of Women Development Cell, Dr. Utpala Kharod ma'am, who is with us, to grace the session with few words. Good afternoon, everyone. And I especially wish Dr. Salim Bhai on this in the session. Namaste. I'm very happy that Women Development Cell of Bhaikaka University has organized a webinar, and the first webinar is on a topic which is very dear to my heart. And I congratulate Dr. Pragya Nair and her team for organizing this event. And I thank you also, for sparing your time. You are doing wonderful job. We know parenting is how important it is. And I really appreciate the participants, all who are here on this platform, because somewhere they have taken parenting seriously, and that is the reason why they are here. So I really appreciate for showing this interest. All practical points you have covered, and I think it is just some few drops you have taken from the ocean of what the problem, what the challenges are. Very true. And so I would like to just, just broadly put my points is, number one, as you rightly said, there is no Pathshala for parents. Somewhere the problems we see is because biologically they are eligible, but by maturity, many parents, they are not eligible. They are not eligible for becoming parents. But nature is so great that he does not take exam. He or she does not take exam. God does not take exam whether you are passing or failing as parents, and they just become parents. So that is number one thing. Secondly, like all our roles, we have different roles to play as a professional, as a family person. As a professional, I may be a teacher, I may be working in a bank, I may be a doctor, I may be a paramedical person. But as Abdul Kalam used to tell, that you have to take your role very seriously. If you take your role very seriously, then you will try to do your level best. So as a parent, as a mother or a father, if I am taking my role very seriously, then I would naturally try to empower myself. Right? I will try to play my role as effectively as possible. But that's not happening in many cases, because we don't know what the parenting is. And if it is said that the parents are born once the child is born, it is not only the child is born. Along with the birth of a child, the parent's birth also takes place at the same time. But I would like to go a step ahead. Parenting starts, rather the birth of parents takes place the moment couple decides to plan a baby, not even in the preconception period. But suppose the parents decide કે અચ્છા આવતા વર્ષથી આપણે પ્લાન કરીશું, તો આ વર્ષથી જ એ લોકોનું પેરેન્ટિંગ શરૂ થાય છે. બીકોઝ જ્યાં સુધી તમારી પાત્રતા નથી હોતી કોઈ એક આખા સોલને એનું બોડી આપવામાં, ત્યાં સુધી તમે ઇફેક્ટિવ પેરેન્ટ્સ નથી થઈ શકવાના. તો પહેલું તો કપલ જ્યારે મેરેજ કરે ત્યારે એને ખબર હોવી જોઈએ કે, અને આજકાલ તો એવું કેવું પડશે કે જો કપલને લાગે કે 1 વર્ષ થઈ ગયું, આપણું મેરેજ ટકી ગયું અને હવે આપણે ચાઇલ્ડ કરવાના છીએ, પાછું બીજું સ્ટેપ હવે એ પણ આવે છે કે ઘણા કપલને ચાઇલ્ડ જ નથી જોઈતું હોતું, અને એ સારી વાત છે. જે લોકો તૈયાર નથી હોતા એ લોકો ચાઇલ્ડ ના કરે જ સારી વાત છે. પણ જે લોકો કપલ એમ નક્કી કરે છે કે મારે ચાઇલ્ડ આપણે પ્લાન કરીશું, તો ત્યારથી જ એ લોકોની એટલી ઇન્ક્વિઝિટિવનેસ હોવી જોઈએ કે એઝ અ પેરેન્ટ્સ વોટ વી આર સપોઝ ટુ ડુ, હાઉ વી શુડ પ્રિપેર અવરસેલ્સ. કારણ કે ત્યારે ને ત્યારે જ એ લોકો ઇફેક્ટિવ રોલ મોડલ્સ થઈ શકશે. એટલે તમારો જે છેલ્લી 2-3 જે સ્લાઇડ્સ હતી કે જેમાં તમે રોલ મોડલની વાત કરી, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ આન્સર. સો આન્સર ઇઝ યુ હેવ ટુ બીકમ રોલ મોડલ્સ. કારણ કે આ બધી થિયરીના તે પ્રેક્ટિસીસ અને ગુડ હેબિટ્સ
એ બધું જ્યારે રોલ મોડલ્સ હશે ઘરમાં અને ટુ સમ એક્સટેન્ટ સ્કૂલમાં એ લોકોના પ્રાઇમરી યર્સમાં, ત્યારે પછી એ લોકોને ખુરશીમાં સામે બેસાડીને આપણે એવું નહીં કહેવું પડે કે ચલ બેટા હવે આજે ઘરમાં સવારે 7 થી 8 સંસ્કાર આપવાનો પીરિયડ છે. 24/7 તમે એક પેરેન્ટ્સ અને તમારું ફેમિલી એક સટલ એટમોસ્ફિયર ઘરમાં ઊભું થતું હોય છે, એક ઓનેસ્ટીનું, એક અફેક્શનનું, એક ઇન્ટિગ્રિટીનું, એક એક્સેપ્ટન્સનું, આ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગનું આ એક સટલ એટમોસ્ફિયર એવું ઊભું થાય કે એમાં પછી ચાઇલ્ડને કશું કદાચ કહેવાની જરૂર નથી પડતી હોતી. ચાઇલ્ડ breathes values and child breathes sanskaras. So I think the most effective is what we want to see in our children. First, we should demonstrate it and we should live that values so that, we don't have to talk about it. The child automatically learns, what we want to see. આપણે કોઈ પેરેન્ટ્સ એમ કે તમે તમારા ચાઇલ્ડમાં તમે શું જોવા માંગો છો, એટલે બહુ સરસ લાગશે કે ચાઇલ્ડ હાર્ડવર્કિંગ હોવું જોઈએ, ઓનેસ્ટ હોવું જોઈએ, કશું છુપાવે એવું ના હોવું જોઈએ, પણ એ લોકો ઘણું બધું એમાંથી ઊંધું જ કરતા હોય. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે કુવામાં હોય તો અવાડામાં આવે, એ લોકોને ખબર નથી પડતી. એટલે ઘણા પેરેન્ટ્સ એવું નથી જોઈ શકતા પોતાની જાતને, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન નથી કરી શકતા. So that's where the problems are, because the children, they are very smart, they are very sensitive. કદાચ આપણે સેન્સિટિવ છીએ આપણી જનરેશનના કરતા ઘણા વધારે સેન્સિટિવ ચિલ્ડ્રન છે. So they can sense કે આ એક દંભ છે, આ પ્રિટેન્શન છે, આ લોકોના બોલવાના અને બતાવવાના ફેસીસ અલગ છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે અંદરથી બહાર સુધી જો ટ્રાન્સપરન્ટ નહીં રહીએ ત્યાં સુધી આપણા ચિલ્ડ્રનમાં આ બધી વેલ્યુઝ આવે એ કરવાનું મુશ્કેલ છે. અને જ્યાં સુધી આ એક પેરેન્ટિંગ છે, એક સોશિયલ એંગલથી જોવાય, એક સાયન્ટિફિક એંગલથી જોવાય, ઘણા બધા એંગલથી જોવાય, પણ એક એંગલ એ પણ છે કે એક જે ઇવોલ્યુશન જે આપણને ખબર છે કે ઇવોલ્યુશન ઇઝ ગોઈંગ ઓન, ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટોપ્ડ. માણસ જાતથી ઇવોલ્યુશન અટકતું નથી. તમે છેલ્લા 10 કે 15 કે 20 વર્ષમાં જુઓ તો તમે જે ચિલ્ડ્રનના માઇલસ્ટોન્સથી માંડીને એ લોકોનું સાયકોલોજીકલ એબિલિટી, એ લોકોની કોઈ પણ એ લોકોની જે પરફોર્મન્સની એબિલિટી છે એ એટલી બધી આપણા કરતા વધારે છે કમ્પેર ટુ પ્રીવિયસ યર્સ કે that probably the evolution, the process of evolution has hastened. અને આવનારા સમયમાં એ ચિલ્ડ્રન એટલા બધા તો સ્માર્ટ હશે, એટલા બધા તો ઇન્ટેલિજન્ટ હશે કે if we do not accept them as individuals, we will be thrown out. So we have to be ready to accept them as individuals, probably sometimes as our superiors also. But of course, considering the age and considering our role and responsibilities as guides also. With this comment, I would wish that we continue our journey. અને ક્યાંક ને ક્યાંક હું એવું ઈચ્છીશ કે અમારી ભાઈકાકા યુનિવર્સિટીમાં આવી જાતનું એક સેલ બને કે જેમાં એક ટ્રેન્ડ ટીમ ઊભી થાય અને એક લોકલ લોકો માટે, કમ્યુનિટી માટે યુનિવર્સિટી તરફથી એક કોન્ટ્રીબ્યુશન એવું રહે સોસાયટીને કે we try to make some difference in this very important area of parenting. Thank you so much. Once again, thank you, Salim Bhai. Thank you. I would like to add one thing. We are also parenting for peace जो हमारी मूवमेंट है उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा वॉलंटियर्स ज्वाइन हो. Even from the international community also they have joined with our movement. So I will request if you can create a cell at Bhaikaka University. Some good active workers, if they want to join us, we are ready to train them. जिस तरह से हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं आप भी कर सकते हो. हमारे पास रेडीमेड मॉड्यूल्स है, रेडीमेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, हम शेयर करते हैं. एंड एक ट्रेनिंग सेशन रख देंगे, उसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, हम सब ट्रेनर को एक बार बता देंगे हम क्या बात करते हैं और कैसे. तो यू कैन कंडक्ट द प्रोग्राम इन योर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. सो दैट कैन बी डन इफ यू कैन क्रिएट ए ग्रुप पेरेंटिंग फॉर P4P भाईकाका ग्रुप, ऐसा कुछ. तो we will be very much happy and you're welcome for that anytime. And secondly, जो बहुत एक हॉट टॉपिक है सुसाइड प्रिवेंशन का, हम काफ़ी मेडिकल कॉलेज में हमने किया है. इवन हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, स्मीमेर में, बाहर भी 1-2 कॉलेजेस में, कॉमर्स और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो काफ़ी सारे किए हैं. तो इफ़ यू हैव सच ए बिग बैकग्राउंड ऑफ द कॉलेजेस ऑल्सो एंड इफ यू वांट टू अरेंज, हम कल हमारा बिहार में एक इंस्टीट्यूट के साथ है, कल ही है, यही टाइम पे है, हम योलो प्रोग्राम यू ऑन द लिव वंस कल करने वाले हैं. उसके पहले हमने SVNIT में 1000 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करके एक बड़ा जूम प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम किया था. तो
So you can also arrange that. You can also arrange training for trainers. We will train you and you conduct the program. So this is also a second thing that you can definitely contribute and do it. We will be very much pleased कि हमारी movement को और वेग मिलेगा और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो एम है, वो हम अच्छी तरह से फुलफिल कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. Definitely, sir. We will definitely keep be in touch with you to Sure. arrange such workshops in future. Sure. Anytime. So to end the session, on behalf of Bhaikaka University, I extend very hearty gratitude to our esteemed speaker, Dr. Salim Hirani sir, for taking time from his busy schedule and sharing his knowledge and wisdom about parenting skills with us. Thank you, sir. I'm sure all the parents, all the participants have immensely benefited from your talk, and we will definitely try our best to imbibe all these concepts in our day-to-day parenting. Thanks a lot, sir. I would also like to thank our provost, Dr. Utpala Kharod ma'am, who has extended her support and encouraged all of us for organizing this workshop. I would like to thank our team of Women Development Cell convener, Dr. Pragya Nair ma'am, member secretary, Dr. Chaitali Patel ma'am, Archana Gupta ma'am, Daksha Mishra ma'am, for working hard to make this event possible. I would like to thank the system departments of our university for their technical support. And last not the least, I would like to thank all the participants for their enthusiastic participation. We at Women Development Cell look forward to organize many such workshops in the future, which would be of interest for all of you. So at the end, I am sending a link for feedback in the WhatsApp group. And I would ask all the participants to kindly fill it, and all the participants would be receiving an e-certificate on their email IDs for their participation. Thanks all. Thanks a lot, sir. Thank you. Yeah, thanks, sir. Should I leave? Yes, sir. Yes, sir. Thank you.